તમારી સાથે અને જેવા સર આપણી સમક્ષ હાજર થશે આપણો પ્રોગ્રામ આપણે ચાલુ કરીએ. તો આપની સમક્ષ આઈટીના વિદ્યાર્થી અને બાયોટેકના વિદ્યાર્થી આઈટીના દેવાંગભાઈ ધોળિયા અને બાયોટેકના વિદ્યાર્થી જરીવાલા નેન્સી આપની સમક્ષ વાતચીત કરશે. તો થોડું એમાં વાતચીતમાં આપણે રસ દાખવીએ અને ત્યાં સુધી તમે ચર્ચાનો લાભ લો. થેન્ક યુ. નમસ્કાર, હું દેવાંગ ઢોલિયા પર્યાવરણ સંરક્ષણ ગતિવિધિથી પશ્ચિમ ક્ષેત્રનો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ. એટલે અમારે કોલેજીસમાં ઇન્ટર્નશિપ કરાવવાની હોય, એસઆઈપી, પહેલાં સ્ટેટ લેવલ પછી નેશનલ લેવલ. સ્ટેટ લેવલમાં જે એક્ટિવ હોય એ લોકોને નેશનલ લેવલમાં જવાનો મોકો મળે. એમાં એડવાન્ટેજ એ થાય કે આપણને પાર્લિયામેન્ટમાં આપણને પેપર પ્રેઝન્ટ કરવાનો મોકો મળે, ઇલેક્યુશન કોમ્પિટિશન્સ મોકો મળે, ઘણી ખરી ઓપોર્ચ્યુનિટી આપણને મળે. એમાં નેન્સીબેને એપ્લાય કરેલું તો એ એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરશે. પર્યાવરણ ગતિવિધિમાં આપણે જોઈન થયેલી હું ઓગસ્ટ 2023માં. એ બહુ સારી વર્કશોપ હતી ઓનલાઈનમાં. એમાં આપણે વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ કઈ રીતે કરી શકાય, પ્લાસ્ટિક મેનેજમેન્ટ કે વોટર મેનેજમેન્ટ, હરિતઘર છે, ઇકોબ્રિક્સ છે, બહુ બધું શીખવા મળેલું હતું એમાં. આ વર્ષે પણ આ મહિને પણ થવાનું છે. તો હું મીન્સ કહું છું કે તમે રહી શકો તો રહેજો. એ બહુ સારો એક્સપિરિયન્સ રહેશે તમારા માટે. Hello everyone, I'm a fellow student of your university. I am Ravina Raj Purohit. I'm doing my Master of Arts in English Literature here. I am in my first semester and I handle the SIP of Surat as of now. I'll be explaining you what SIP is. So SIP is basically a social internship program where you get 3 days worth of training about Haritghar. Now Haritghar is a concept of how to maintain your house more environmentally consciously. We will teach you little tricks and you'll be thinking कि environmental conscious होना बहुत मुश्किल है. You have to take huge steps for it. But ऐसा नहीं है. It's very very basic. छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे नल बंद करना है, लीक हो रहा है तो, and then eco bricks बनाना. These are very basic daily activities that you can do. And as students that who are going to be a part of the society that is growing right now, we should be the first ones to understand the position that we are right now. As all of you know that we are at a very critical stage, considering the amount of pollution that is going on, considering the amount of global warming that is going on. And the second session is about waste management, waste segregation, water conservation. Now, how do you conserve water? How do you do rainwater harvesting? How do you make compost at home? Making compost at home is very easy. Compost sounds like a very difficult topic to some people at first, but when you start doing it, it gets very easy. We have experts explaining to us what it is and how we can do it. And as students of biotechnology, it will be very beneficial for you to be environmentally aware so that you can move forward into the society as vital members of it. So I suggest all of you join SIP. We will forward you a link. It'll be worth your time. We will have 3 hours worth of session every day for 3 days. And we also have national SIP. When you complete regional SIP, we will select a few students who will feel like are active and who we feel like would be a good part of the national SIP. Then we nominate them to the national SIP. In national SIP, we have 15 days worth of content in which we have Haritghar, water management, waste management, water conservation, and various topics divided into 1 hour sessions every day for 15 days, as well as tasks. So you can do those, and we will have experts in the 15 days worth of sessions. So I urge you to join this, and we'll be very happy if only few of you join. It's not important that all of you join. If only 3 of you join, it will be very impressive, very important for us, because we are planning to change the world. At least like 1-2 people get motivated to do something.
we are not thinking कि पूरी university एक साथ जाग जाएगी. We will have cleanliness everywhere. It's not our plan. We think that छोटा छोटा करके I think we will be able to bring a change in the society. So I hope that at least 2 or 3 of you join this session. We'll forward you a link. If any of you have any query regarding this, please let me know. Okay. Also, SIP is managed by Paryavaran Sanrakshan Gatividhi. Paryavaran Sanrakshan Gatividhi is an all India group which has the aim of Ped, Pani, Plastic, the 3 P's. Planting more trees, conserving water, Pani, Ped, Pani, and plastic. Banning plastic or reducing plastic waste that is right now in the society. So these are the 3 P's of Paryavaran Sanrakshan Gatividhi. And our aim is to help the environment. We are not opposing what is already there, what is happening in the society. We are trying to help the environment by reducing the interference that we have. Thank you very much. અનાઉન્સમેન્ટ કોણ કરવાનું છે પરિચય માટે આપજો. પરિચય માટે સારાંશ કીધું. Hello. Hello, good morning and warm welcome to everyone. I extend a warm welcome to our honorable guest, faculty members and all the students. We shall begin our program with an invocation and lighting of the ceremonial lamp. The lighting of the lamp is symbolic representation of the pursuit of knowledge, enlightenment and illumination of path that lies before us. I would like to invite the dignitaries to lead us in the invocation and lighting of the lamp. Yeah.
Thank you for the auspicious invocation and symbolic lighting of the lamp, which signifies blessings and positive energy. I would now like to request our Honorable Registrar Sir, Dr. Ramesh Dan Gargi, to felicitate our esteemed guest, Professor Chetan Singh Solanki Sir. I would now like to request Dr. Gaurav Shah Sir, Coordinator of Department of Biotechnology, to felicitate respected Registrar Sir and our esteemed guests. I now request Dr. Gaurav Shah Sir to felicitate Deepak Goyal Sir, Head of MRS Department. Guest and I would now like to request our Honorable Registrar Sir, Dr. Ramesh Dan Gargi, to give the welcome address. Namaskar, respected Professor Chetan C. Solanki sir. He is professor at IIT Bombay, but he is on the march regarding the environment. We all know that environment is the concern of the day and time. It is our concern. So he is on the march towards regarding the environment. Respected Gaurav sir, हेड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, हमारे सामने बैठे कुछ अपने गेस्ट है, उनका परिचय श्री नीलेश भाई सोलंकी जी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पर्यावरण गतिविधि, उनका जरा एक स्वागत के लिए मैं नीलेश भाई सोलंकी अपना जो पर्यावरण गतिविधि है उनका वो काम देखते हैं पूरे गुजरात का, वो कोऑर्डिनेटर है, सहसंयोजक है। उनको स्वागत के लिए मैं गौरव सर को थोड़ा रिक्वेस्ट करता हूं। साथ में देवांग भाई आए हैं, पर्यावरण गतिविधि का पश्चिम क्षेत्र है, उनका काम करते हैं। रवीना बेन, रवीना जी जरा आगे आ जाइए प्लीज, आगे आ जाइए, आपका एक थोड़ा स्वागत कर देते। ये दोनों छोटे बच्चे हैं, उम्र में छोटे दिख रहे हैं लेकिन काम बहुत बड़ा कर रहे हैं। रवीना पुरोहित जी यहाँ अपने अंग्रेजी विभाग है, उसमें वो अंग्रेजी साहित्य में 3rd सेमेस्टर में पढ़ाई करती है, लेकिन रवीना जी और देवांग जी दोनों पर्यावरण गतिविधि का काम देखते हैं। और देवांग जी दिखने में छोटे आयु, कम आयु के दिखते हैं, लेकिन पूरा पश्चिम भारत का जो युवा आयाम है, उनका युवा आयाम का दायित्व उनके पास है। और वो पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, विदर्भ, कोंकण सब वो पूरा पश्चिम क्षेत्र का पर्यावरण गतिविधि का दायित्व उनके पास है। दोनों बहुत अच्छा काम करते हैं, इसलिए आप दोनों का भी मैं स्वागत करता हूँ। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे क्योंकि आज हमारे साथ इतने बड़े विद्वान आए हैं और ऐसा एक विषय लेके आए हैं,
तो ज़्यादा समय उनको मिले, इसीलिए मैं अपनी बात को यहीं पे पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। I would now like to request Dr. Mansi Mehta ma'am to give brief introduction of our esteemed guest. Very good morning, everyone. I am excited to take an opportunity to introduce our event guest, Professor Chetan Singh Solanki sir. He is an educator, innovator, happiness program teacher of Art of Living. आप श्री ने नवंबर 2020 से सोलार बस के माध्यम से वर्ष 2030 तक की अपनी स्वराज यात्रा शुरू की है। इस यात्रा में 11 वर्ष तक आपने घर न जाने की प्रतिज्ञा की है। इस यात्रा का उद्देश्य 100% सौर ऊर्जा अपनाने की दिशा में एक सार्वजनिक आंदोलन है। माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निजी पत्र के जरिए आप श्री की यात्रा को सराहा है। आप श्री को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सौर ऊर्जा की ब्रांड एम्बेसडर से सम्मानित किया गया है। गांधीवादी आदर्शों के चलते हुए कुछ लोग आप श्री को सौर गांधी के रूप से जाने जाते हैं और सोलर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित हो चुका है। आप श्री ने एनर्जी स्वराज फाउंडेशन की स्थापना की है। सस्टेनेबिलिटी परियोजना के लिए 7.5 मिलियन परिवारों तक पहुंचते हुए आप श्री ने स्वच्छ रोशनी का प्रदान किया है। आप श्री मंत्री नवाचार पुरस्कार, ONGC द्वारा चूल्हा डिजाइन चैलेंज में प्रथम पुरस्कार, 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 2 युवा वैज्ञानिक जैसे कई सारे पुरस्कार से आप सम्मानित हो। आप श्री ने 8 किताबें और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 100 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। तदुपरांत आप श्री 4 अमेरिकी पेटेंट आपके नाम पर है। 2019 के दौरान आप श्री ने सौर ऊर्जा का संदेश फैलाते हुए 30 देशों की यात्रा कर ली है। अपनी चल रही ऊर्जा स्वराज यात्रा में अब तक 40,000 किलोमीटर और 1,75,000 जनसंख्या से आप मिल चुके हैं। 11 साल की यात्रा में देश भर में 4 से 5 बार यात्रा करने की आपकी उम्मीद है। यात्रा का लक्ष्य 100 करोड़ से अधिक लोगों तक ऊर्जा साक्षरता लाना और 1 करोड़ से अधिक परिवारों को 100% सौर ऊर्जा के लिए प्रोत्साहित करना है। आप श्री ने आपके द्वारा लिखित पुस्तक एनर्जी स्वराज में इस चीज का वर्णन किया है कि ऊर्जा स्वराज या ऊर्जा स्वतंत्रता का अपनाना एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। Now I would like to request Professor Solanki sir to continue our event by sharing some words with us. Thank you. Thank you so much for having me here as part of my Energy Swaraj Yatra. Thanks to the Biotech Department for hosting my Energy Swaraj Yatra here today. And I'm first time coming to this university and I hope I'll be coming again. Thanks to
Honorable Registrar Dr. Ramesh Danji, Dr. Gaurav Shah, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से आए नीलेश काका जी, and the young Divan and Ravina, all other faculty members and all the students. It's indeed my pleasure to be here. मैं खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में हूँ. And I'm going to talk to you about the climate change and why it has changed and how are we going to correct it. But before I do that, let me ask all of you, how are you all? All fine? What a disaster. Hello? Yeah. What a disaster that you people are only fine. ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है. अगर मैं पूरे देश भर में विदेश में घूमता हूँ, सबसे पूछता होता कैसे हो सबसे पूछता रहता हूँ, तो सब लोग बेचारे फाइन रहते हैं, ठीक ही रहते हैं, है ना. जबकि हम इतने सारे काम करते हैं, अच्छा खाना खाना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, आइसक्रीम खाना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई लिखाई चाहते हैं, अच्छा पद चाहते हैं, अच्छा पोजीशन चाहते हैं. सबके पीछे एक ही उद्देश्य है. गीता में लिखा है जितने काम हम करते हैं वो सबका एक ही उद्देश्य होता है, खुश होना, अच्छा लगना. पर दुर्भाग्य की बात है, लोग फाइन रहते हैं. मुंबई भाषा में मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है. मुंबई भाषा में बोलते गड़बड़ है, सब कुछ तो लोचा है दुनिया में. लोग फाइन कैसे हो सकते हैं? इतना सब कुछ भगवान ने दिया, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी सब कुछ है, पर ओनली पीपल रहता है. इसलिए मैंने एक नियम बना के रखा है. मैं उन्हीं लोगों से बात करता हूँ जो हैप्पी होते हैं. तो यदि आप लोगों को मुझे सुनना है तो आपके पास दो चॉइस है. Either you are happy by choice or you are happy by force. कौन सा चॉइस पसंद है? Happy by choice पीछे कौन सा चॉइस पसंद है? Happy by choice or force? Choice, very nice. So with this note, let me ask once again, how are you all? How are you all? Happy. Happy, very nice. What is the proof that you are happy now? There is some लोग happy बोल रहे हैं. स्माइल ऑन द फेस, राइट? तो जब तक मैं आपसे बात करूं, आपको चेहरे पर स्माइल रखना है. नकली होगी तो भी चलेगी. यू आर एग्री विद मी? वेरी गुड. सो लेट्स कीप स्माइलिंग. बाय द वे, मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं. जिससे चेहरे पर स्माइल आती है. आपको सीखना है टेक्निक? वेरी गुड. लेट्स डू वन थिंग. हम क्या करने वाले हैं? एक छोटा सा प्राणायाम करेंगे जिससे स्माइल आती है. स्माइल वाला प्राणायाम आपने कभी सुना है? नहीं सुना. मैं बताता हूँ. ये प्राणायाम का नाम है आश्चर्यचकित प्राणायाम. देखो, प्राणायाम के नाम से स्माइल आ रही है. ये प्राणायाम में क्या करना है? हम सबको आश्चर्यचकित फील करना है. आश्चर्यचकित कैसे फील करते हैं? आंखें खुल जाती है, मुंह खुल जाता है. मैं एक बार आपको करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग भी करना. ठीक? तो मुझे ध्यान से देखना आश्चर्यचकित कैसे फील करते हैं. समथिंग लाइक दिस. ठीक है? थोड़ी आवाज आई, आप बोले, बात पीछे आएगी. रेडी? तो आप सब लोग आश्चर्यचकित प्राणायाम के लिए तैयार हो जाएंगे. कैसे करना है? अच्छा, जिनको खुश होना है वो करेंगे, जिनको दुखी रहना वो नहीं करेंगे. ठीक है? तो हाथ साइड में कर लें. सब लोग हाथ साइड में कर लें और 3 की गिनती पर पीछे 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 आप लोग बोलोगे तो मैं चुप हो जाऊंगा. ठीक? ये रूल है मेरे काम का. पीछे के लोग तो 3 की गिनती पर 100% एनर्जी के साथ में आश्चर्यचकित फील करना. ठीक? जितना ज्यादा एनर्जी लगाओ उतना अच्छा लगेगा. रेडी? एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3. गुड. बाय द वे, ये ट्रायल का रियल वाला करेंगे. ये ट्रायल का रियल वाला करेंगे. रियल में क्या करेंगे? हम लोग 5 बार लगातार करेंगे. ओके? तो गेट रेडी फॉर द प्राणायाम. हाथ साइड में कर ले, चेहरे पर मुस्कुराहट हो और 100% एनर्जी के साथ में करेंगे. ठीक? एट द काउंट ऑफ 3, 5 बार लगातार. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? ऑलराइट. प्राणायाम अच्छा लगा? यदि प्राणायाम अच्छा लगा तो मुझे लगा कोई मेरे लिए थोड़ी थोड़ी ताली वाली
स्पीकर से बोलना पड़ता है। See the problem? Well, when with this hashing out, let me start talking about an extremely serious problem, climate change, and how do we correct it, which I believe very few people understand. बहुत कम लोगों को विषय समझ में आता है. 99% people don't understand. But before I do that, let me show my firstly my home. By the way, इस एग्जाम मैंने 11 साल के लिए घर छोड़ दिया है. मैं लास्ट टाइम अपने घर गया था तो 2020 था. अगली बार मैं घर जाऊंगा तो 2021 हो जाएगा. मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी. तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि 11 साल के लिए कोई आदमी घर क्यों छोड़ देता है? दो कारण हो सकते हैं. एक तो आदमी का दिमाग खराब हो गया, स्कूल ढीला हो गया, वो प्रोफेसर लोगों का कभी हो जाता है. या दूसरा जेन्युइन है कि कुछ जेन्युइन रीजन हो. तो मुझे देख के आप लोगों को क्या लगता है? मेरा स्कूल ढीला लगता है? Thank you so much for being kind to me. It means there is a genuine reason कि मैं क्यों 11 साल के लिए घर छोड़ा है. That is about the climate change. This is my home for 11 years. And it's not a normal place. There is a bed inside, there is a kitchen inside, there is a washroom inside, there is an office inside, there is a library inside, there is a training room inside. बस के अंदर टेंपल भी है, तो एक छोटा सा गार्डन भी है. Yes, there is a garden inside the bus, and there are solar panels at the top. और पैनल से enough electricity generate होगी to meet all the requirements of my home. आप लोगों को मेरा घर देखना है? मेरे घर की खासियत है कि मैं इसको कहीं नहीं ले सकता. अभी मैं घर के साथ आया, तो आप लोग ये लेक्चर के बाद जाके विजिट कर सकते हैं. Let me start with this quote. Plato एक ग्रीक फिलोसोफर थे. अच्छा, आप लोग बात करो तो मैं चुप हो जाऊंगी. पीछे खास करके तुम्हें भी चुप हो जाओ तो समझ लेना कोई बात है. Plato ग्रीक फिलोसोफर थे. उन्होंने एक किताब में लिखा है that every king should be a philosopher और only philosopher should become a king. हर राजा को दार्शनिक होना है, क्योंकि राजा के पास बहुत पावर होती है. राजा जब होते थे अपने एक डिसीजन से पूरी प्रजा की दिशा बदल सकते. तो दार्शनिक क्यों होना चाहिए? क्योंकि पावर विदाउट फिलॉसफी इज वेरी डेंजरस. एंड वी द मॉडर्न पीपल ऑल ऑफ अस आर वेरी पावरफुल टुडे. हम इतने पावरफुल है कि हम चांद पे जा सकते हैं, हम मार्स पर अपना मिशन कर सकते हैं, इतना बड़ा हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, इतनी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, बड़े रोड बना सकते हैं. हम बहुत ताकतवर इंसान हो गए. पर दुर्भाग्य की बात क्या है? फिलॉसफी का टच चला गया. हमको पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, बस कर रहे हैं. Only thing we are doing is doing. For example, आप सब लोग एक ही करेंगे, देश में GDP बढ़ना चाहिए, राइट? कितना बढ़ना चाहिए किसी को पता नहीं. यहाँ तक मैं आंसर देता हूँ. यदि प्रधानमंत्री से पूछा जाए, मोदी जी बताइए देश का GDP कितना बढ़ना चाहिए, मोदी जी क्या कहेंगे? ज्यादा से ज्यादा बढ़ना चाहिए. कितना बढ़ना चाहिए पता नहीं. अच्छा, कब तक बढ़ना चाहिए? क्या अगले 10 साल जीडीपी बढ़ा के देश का उद्धार हो जाएगा? 20 साल, 40 साल, कितने साल और जीडीपी बढ़ाना चाहिए? पता नहीं. जितने लंबे समय बढ़ते रहता है, राइट? इसका मतलब समझ रहे? ये नहीं पता कि कब तक बढ़ना और कितना बढ़ना. टेक्निक जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी से, टेक्निक वैसे जैसे बिना ब्रेक की गाड़ी चला सकते है ना. तो जो बिना ब्रेक की गाड़ी चलाता है उसका क्या होता है? क्या होता है? एक्सीडेंट. ऐसे लग रहा है इंसानों का या तो एक्सीडेंट हो चुका है या होने की बात है. समझ आ रही? एंड इसलिए मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा. क्लाइमेट चेंज मतलब क्या, क्यों, कैसे, कब ठीक करें, कौन ठीक करेगा, किसको क्या करना है. ये 6 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत कम लोग इस विषय को समझते हैं. आप लोग ध्यान से सुनना. अब ये 6 पॉइंट सीख के जाएंगे तो काम होगा. Are you all ready? Yes. Very good. So let's start with the point number 1. Climate change is what has changed. क्या चेंज हो गया? दुनिया भर में हर दिन न्यूज़पेपर में आया क्लाइमेट चेंज. क्या चेंज हो गया? एक चीज चेंज हो गई है. हमें धरती पहले ऐसी होती थी, अपने इतना सुंदर फोटो तुमको मिलेगा भी नहीं, जाके लेना पहले तो सब दूर था. But one of the way to describe climate change is changing weather system. जैसे पहला वेदर था आपने, है ना. फॉर एग्जांपल
एक्सट्रीम फ्लड्स, दुनिया भर में 1000 साल पहले भी फ्लड्स आते थे, 500 साल पहले भी फ्लड्स आते थे। दूसरा मतलब पाँच सौ साल 1000 साल पहले भी फ्लड्स आते थे, परंतु अब जो फ्लड्स आने की संख्या देखो 1970 to 79 दशक के तुलना में 5 टाइम्स 500% ज्यादा बाढ़ आती है। पूरी बाढ़ कहां पर आ रही है? दुनिया भर। इंडिया में पाकिस्तान एक साल पहले जब बाढ़ आई तो 1/3 पाकिस्तान डूब गया था। लेकिन नहीं, 1/3 और कहां बाढ़ आती है? चाइना, रशिया, यूरोप, ब्राजील, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया पता क्या है? रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बाढ़ आती है। कैन बिलीव इट? ये सब हो रहा है हमारे आंखों के सामने। 5 टाइम्स मोर इट इज टेकिंग प्लेस। फॉरेस्ट फायर्स, आप सबने अमेज़न फॉरेस्ट फायर का नाम सुना है? ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट फायर, कैलिफोर्निया, ग्रीस, इटली, टर्की, रशिया, यूके और रिसेंटली कनाडा। इतनी जंगल में आग लगी कनाडा, एक पूरा जो उनका स्टेट का कैपिटल था उसको खाली करना पड़ा, पूरे शहर को खाली करना पड़ा। इंसान और पावरफुल कंट्री, कनाडा के पास क्या नहीं है? साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसे, एवरीथिंग। वेरी पावरफुल कंट्रीज also cannot control what is happening on this planet. So forest fires are also increasing 5 times. What else? Ice is melting. North Pole and South Pole. कितनी आइस मेल्ट हो रही है? नॉर्थ पोल पर 40% बर्फ गायब हो चुकी है ऑलरेडी। और ऐसा अनुमान है आज के 10-12 साल बाद जब वहां पर गर्मी आएगी, साउथ पोल में गर्मी, नॉर्थ पोल में गर्मी आएगी, तो बर्फ पिघल के जीरो हो जाएगी। Can you imagine? Ice cap गायब हो जाए समर के महीने में। Now this is what is the situation. ऐसे पानी पिघल के जाता है समुद्र के अंदर जाता है और समुद्र की हालत हो गई। ये मैं जब यात्रा में गई थी, साथ गया गांव करके मैं किसी ने सर आप जरूर जाना, मैं गया वहां पे शॉक जैसे धक्का लगता है ना, लेकिन वैसा हुआ। गांव में हुआ करते थे, गांव हुआ करते ये अब नहीं। कहां चले गए? गांव का जो मंदिर है समुद्र के अंदर, गांव का हेडक्वार्टर समुद्र के अंदर, ये जो गांव, ये समुद्र का किनारा देख रहे हैं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर होगा। बट सी लेवल इज राइट सी लेकर 3.4 मिलीमीटर पे समुद्र को क्या बोलते हैं? अनंत समुद्र, अथाह समुद्र, सात समुद्र, उसका भी लेवल बढ़ता है। हर साल बांग्लादेश में करीब 10 से 12 लाख लोग अपना घर छोड़ के, खेत बाग छोड़ के जाते हैं क्योंकि समुद्र का पानी इतना बढ़। तो क्लाइमेट चेंज मतलब ये सब हमारे आंखों के सामने हो रहा है। क्लाइमेट चेंज मींस इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरेटिंग वेदर सिस्टम। इज द पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। पॉइंट नंबर 2, क्यों हो गया है? ऐसा क्या हो गया धरती पर ये सब चेंज? और मैं लोगों से पूछता हूँ, बोलते हैं फॉरेस्ट कट गए, इस कारण ऐसा हो गया है, पॉल्यूशन के कारण हो गया है, प्लास्टिक के कारण हो गया है, बहुत सारे कारण पता। बड़ा ध्यान से देखेंगे, there is only one reason, एक ही कारण है पूरे गड़बड़ का, और वो क्या कारण है? एनर्जी का उपयोग। हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं। वो इतना महत्वपूर्ण हो गया है मॉडर्न लाइफ में कि एनर्जी के बिना एक सेकंड नहीं जी सकते। हर सेकंड में एनर्जी चाहिए। इतना महत्वपूर्ण है कि यूनाइटेड नेशन ने 17 डेवलपमेंट गोल्स बनाए, SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सबके केंद्र में एनर्जी है। तो चाहे ग्रोथ करना हो, पॉवर्टी खत्म करना हो, एजुकेशन करना हो, हेल्थ करना हो, इंडस्ट्री बढ़ाना हो, क्लाइमेट चेंज है, यहाँ तक कि ग्लोबल पीस और पार्टनरशिप, इसका संबंध भी एनर्जी से। दुनिया में शांति रहने के लिए किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी पर डिपेंड करता है। दुनिया में देशों के संबंध ठीक रहेंगे कि नहीं रहेंगे किस पर डिपेंड करता है? एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो देखो यूक्रेन में रशिया में क्या हुआ, क्या उसके पीछे एनर्जी का हाथ है? यस। इराक में जो वार हुआ, क्या उसके पीछे एनर्जी का हाथ था? यस। तो एनर्जी इतनी इंपॉर्टेंट है और ये पूरी दुनिया खेली एनर्जी से। एवरीथिंग इज एनर्जी। द प्रॉब्लम इज वी आर प्लेइंग द रॉन्ग गेम ऑफ एनर्जी। जो हम खेल खेल रहे हैं दुनिया में एनर्जी का, वो बहुत गलत खेल रहे हैं। और ये उसका ग्राफ का एग्जांपल है गलत वे से। सबसे पहली बार हमारे हाथ में कार्बन एनर्जी लगी कब? 1850
इंडस्ट्रियलाइजेशन कब चालू हुआ था? 1850 में। 1850 के पहले दुनिया में लोग कैसे जीते थे? इससे पहले 100% वैल्यू हमारा जीवन बायोमास से, विंड से, हाइड्रो से चलता है ना। 1850 में मनुष्य के हाथ में क्या लग गया? कोयला। फिर 1900 में आते आते अच्छा के क्रूड ऑयल, फिर 1950 आते आते गैस, और 1950 के बाद में देखो किधर जाएगा, कितना तेजी से एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है। आज 2023 में जब मैं एनर्जी कंज्यूम करता हूँ तो मैं कहाँ से करता हूँ? मेरे पास कोल, ऑयल, गैस, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो, ये सारे संसाधन हमने यूज किए हैं। बट द प्रॉब्लम इज ये जो तीन है, कोल, ऑयल और गैस, देखो कितना बड़ी मात्रा है ग्राफ से। आज की तारीख में करीब 85% एनर्जी दुनिया में तीन साधन से आती है। क्या क्या साधन? कोल, ऑयल एंड गैस। 85%। उसका मतलब क्या? सोलर, बायोमास, विंड, हाइड्रो, न्यूक्लियर, ये पांच मिला के सिर्फ 15%। 85% comes from coal and gas। तो प्रॉब्लम क्या है? तो दिक्कत है कोल और गैस की प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम? सबसे पहली प्रॉब्लम है कि भारत देश एक गरीब देश है एनर्जी के मामले। हमारे पास कोल नहीं है इतना जितना अच्छा क्वालिटी का, हमारे पास क्रूड ऑयल नहीं है, कच्चा तेल 85% बाहर से आता है, 60% गैस बाहर से आती है, 30% कोयला बाहर से आता है, 80% न्यूक्लियर फ्यूल बाहर से आता है। तो बाहर से लाने के लिए पैसा लगता है, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। भारत देश हर साल कितने पैसे खर्च कर सकता है एनर्जी इंपोर्ट करने के लिए? 12 लाख करोड़ रुपए हर साल, जो हमारी विदेशी मुद्रा की कमाई का 50% होता है। मतलब जितने हम डॉलर कमाते हैं उसका आधा डॉलर टाइम में खर्च करते हैं एनर्जी को लाने। और जिस देश के पास डॉलर नहीं होता उसका क्या होता है? जिसके पास पैसा नहीं होगा डॉलर विदेशी में, उसका क्या होगा? आटा नहीं मिलेगा। और क्या होगा? अभी श्रीलंका में हुआ मतलब 8 महीने पहले 9 महीने पहले खाना नहीं मिल रहा था लोगों को। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है कोल, ऑयल एंड गैस से हमारे पास है नहीं, दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, पैसा लगता है। कोई बात नहीं, पैसे का हिसाब किताब मोदी जी देख लेंगे, तो देख लेंगे, अपने को ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है? ये तीनों जो है कोल, ऑयल एंड गैस एक ही अणु से मिले, एक ही मॉलिक्यूल से, एक ही एटम से बने। क्या एटम से बने? कार्बन। कोल इज कार्बन, पेट्रोल इज कार्बन, डीजल इज कार्बन, एलपीजी इज कार्बन, सीएनजी इज कार्बन, एलएनजी इज कार्बन। और कार्बन को जलाते हैं तो क्या रिएक्शन होता है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सब एनर्जी यूज कर रहे हैं, नेचुरल का एनर्जी यूज कर रहे हैं। आप चेयर पे बैठे हो वो भी एनर्जी का उपयोग है, बिकॉज़ तो चेयर को बनाने में एनर्जी लगी, लोहा निकाला गया, उसको मोल्ड किया गया, उसको मैन्युफैक्चर किया गया। आपने सुबह ब्रश किया सब लोगों ने? पक्का किया? वेरी गुड। ब्रश करना कितना खतरनाक काम है आपको पता है? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ब्रश करने कितना खतरनाक है। तो ब्रश करने के लिए क्या लगता है? ब्रश करने के लिए हमें टूथपेस्ट लगता है, और टूथपेस्ट को मैन्युफैक्चर करना है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आपने देखा कि उसमें बड़ी-बड़ी मशीनें होती है, सारा स्टील की बॉडी होती है और इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी। फिर आप टूथपेस्ट ट्यूब में तो नहीं खरीदते हो, आपको सुंदर सा पैकेज चाहिए, तो पैकेज बनाने के लिए कार्डबोर्ड बनाना पड़ता है, उसको कलर से सुंदर पेंटिंग होती है, उसमें एनर्जी लगती है। फिर आपका टूथपेस्ट कहाँ बना है किसी को पता है? आपके घर से 500 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर है, तो टूथपेस्ट को बड़े-बड़े ट्रक में लेके ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उसमें एनर्जी लगी। फिर टूथपेस्ट दुकान पे आता है, दुकानदार अपना यूज करेगा, लाइट चलाएगा, पंखा चलाएगा। आजकल तो बिगड़े हुए लोग हैं, तो टूथपेस्ट को भी एसी में रखेंगे माल में, है ना? ऐसा करता है, उसमें एनर्जी लगी। फिर तुम उसको लेने जाते हैं तो पैदल तो जाते हैं कि महान लोग हैं, कैसे रहेंगे? कार से रहेंगे, उसमें एनर्जी लगी। फिर बेचारा टूथपेस्ट तुम्हारे घर आता है। ये सिर्फ टूथपेस्ट की कहानी है। ब्रश करने के लिए क्या चाहिए साथ में? टूथब्रश चाहिए, तो टूथब्रश को मैन्युफैक्चर करो, फिर पैकेज करो, फिर ट्रांसपोर्ट करो, फिर दुकान पे स्टोर करो, फिर लेने जाओ, तब जाके ब्रश आए। तो टूथब्रश और टूथपेस्ट से ब्रश हो जाता है? नहीं, क्या चाहिए? पानी चाहिए। और पानी के लिए क्या चाहिए? पाइप चाहिए। पाइप के लिए लोहा चाहिए, लोहे से खदान बनाना पड़ता है, तब जाके पाइप लगता है। साथ में मोटर चाहिए, मोटर बनाने के लिए मैग्नेट लगते हैं, कॉपर का वायर लगता है, तब जाके मोटर बनती है। और साथ में
स्टोर करने के लिए टंकी चाहिए ऊपर। टंकी किससे बनती है? सीमेंट और कंक्रीट एनर्जी। ये सबसे ब्रश हो जाता है, हो जाता। और क्या चाहिए? वॉश बेसिन चाहिए। वॉश बेसिन सिरेमिक का बना होता है, पता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा उसको मेल्ट करना पड़ता है, तब जाके वॉश बेसिन बनता है। क्या ये सबसे ब्रश हो जाता है? हेलो नहीं। सुबह सुबह अपना थोबड़ा देखने के लिए क्या चाहिए? मिरर चाहिए। मिरर को 750 डिग्री में मेल्ट करना पड़ता है, तब जाके क्वार्ट्ज मिरर बनता है। ये सबसे ब्रश हो जाता है? नहीं। आपने मोस्ट लाइकली बाथरूम को चारों तरफ से बंद करके रखा होगा, तो आपको बल्ब चाहिए, लाइट चाहिए, फिर उस लाइट चलाने के लिए बिजली चाहिए, वो बिजली चलाने के लिए कोयला चाहिए, जो कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से आता है। इतना सारा काम करने के लिए, इतना सारा काम करते हैं, तब जाके एक गतिविधि संपन्न होती है, ब्रश करना। तो कितना समय लगता है ब्रश करने में? 3 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। आप समझ में ब्रश करना कितना समय लगता है? इसका मतलब है कि कल से ब्रश मत करो। इसका मतलब है कि धातु का उपयोग करो और कुछ थोड़ा ऐसे साधन करो, केयरफुली करो। बट व्हाट आई एम सेइंग इज, हम सब एनर्जी का उपयोग करते हैं, और जब भी एनर्जी का उपयोग करते हैं, 85% पूरा कैसे आता है? उसके कारण कार्बन एमिशन। आज खाना खाओगे तो कार्बन एमिशन करोगे, अंदर जाओगे तो कार्बन एमिशन करोगे। ये कार्बन एमिशन करते कहां है? घर में खाना पका रहे हैं, वहां बढ़िया इलेक्ट्रिसिटी जला रहे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हो किचन में से? कहां छोड़ देते हो? एटमॉस्फेयर में, राइट? हम सब लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ते हैं जैसे एटमॉस्फेयर तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी। पिताजी का है, दादाजी का है, नाना का है, चाचा का है। दादा सब लोग अपने पिताजी का प्रॉपर्टी मान के चलते। किसी ने आज तक ये नहीं सोचा कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एटमॉस्फेयर खुद ही फाइनाइट है। एटमॉस्फेयर अनंत है, नहीं फाइनाइट है। एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है? नथिंग, वैक्यूम। So whatever you are growing in this finite environment को थोड़े पिछले 800,000 साल से ये जो लाइन है फिक्स है। कितने साल से? 800,000 साल। कार्बन डाइऑक्साइड जो धरती के वातावरण में इकट्ठा होता है 280 ppm के बराबर, परंतु मनुष्यों के हाथ में जब से क्या लगा है? 1850। और 1850 के बाद देखो कहां जा रहे हैं। जब से मनुष्यों के हाथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कोल, ऑयल एंड गैस लगा है, धरती के वातावरण में हमने एक्स्ट्रा थ्रो करके 50% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल आज की तारीख कितना? 50%। Is that a small change or a big change? क्यों? हम सब मनुष्यों ने मिलकर धरती के वातावरण को 50% बदल डाला। कितने खतरनाक लोग हैं। 50% तुम्हारा हाइट बता बढ़ जाए घट जाए, इतना बड़ा चेंज होगा। We have done this, right? And the problem is carbon dioxide is not a normal gas. कौन सी गैस बोलते हैं इसको? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस से ऊपर जाती है तो क्या करती है? नहीं, ग्रीन हाउस गैस आती है ऊपर तो क्या करती? ऊपर से मनुष्यों को घूर घूर के देखती नीचे लोग क्या कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस से ओजोन को कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। ओजोन से ग्रीन हाउस गैस का कोई संबंध नहीं है। वो ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम करती है। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? गर्मी को पकड़ना, हीट को ट्रैप करके रखना। क्योंकि धरती के वातावरण में 50% एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए गर्मी को पकड़ने की क्षमता पृथ्वी की कितनी बढ़ गई है? 50%। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट टेंपरेचर बढ़ रहा है। आप सब अनुभव कर रहे हैं हर साल गर्मी बढ़ती है। सेकंड प्रॉब्लम, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक बार हवा में जाती है तो एवरेज 300 साल तक रहती है। कितने साल तक? व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जो पंखे का आनंद ले रहे हो तुम इस हॉल में बैठ के, उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। आज जो खाना खाने वाले हो उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। What a disaster that we all commit every single day on this planet, which has effect for 300 years. As a result of that, the temperature of the planet is rising. है ना? पहले कम कार्बन डाइऑक्साइड था, हमने 1850 से कार्बन डाइऑक्साइड प्रूव करना था, उनके पहले कम था तो इस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा था, फिर थोड़ा बढ़ गया तो इस रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अभी ग्लास के 7-8 साल तो ऐसे बढ़ रहा है।
7-8 days. So climate is not changing, climate has changed. And not only it has changed, climate change is accelerating. उसके बहुत तेजी से चेंज हो रहा है. Are you all feeling it? The change is very very fast. आज के 20 साल पहले मैं जब छोटे बच्चों से जब पूछते थे क्लाइमेट चेंज हो रहा है क्या, तो सिर्फ बड़े लोगों को फील हो जाता है कि हो रहा है, क्योंकि स्लो है. आज आप 10वीं के बच्चे से जाकर पूछो, स्कूल में पूछो, आपने अपने जीवन में चेंज अनुभव किया है क्या? You say yes, because change is happening very very fast, and that's what the problem is right now. Temperature of the planet is increased by 1.19 degrees centigrade, which is 2.1 degree. इतना तापमान बढ़ चुका है. ये छोटा चेंज है कि बड़ा चेंज? बहुत बड़ा चेंज. You know why? Because our body temperature कितना होता है? 97-98 डिग्री में. बाइसन बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाए, 100 डिग्री हो जाए, तो क्या बोलते हैं लोग? बॉडी हैज गॉट फीवर, शरीर को बुखार है. धरती का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गया है, तो क्या हम बोल सकते हैं धरती को बुखार है? यस और नो? माय गॉड, धरती को बुखार है. तो तुम्हें बुखार आता तो क्या करते? पैरासिटामोल, डोलो 650, एवरीबॉडीज फेवरेट है. सबको डोलो 650 कोविड में हो सकती है. क्या ऐसी कोई दवाई है जो धरती को दे और उसका तापमान कम हो जाए? Anything that you can think? If you are thinking it is a plantation, you are very wrong. पौधे लगा के ये सब नहीं हो सकता, and I'm going to explain you why. But plantation is not that medicine that we need. The temperature is increased by 2 degrees, 2.1 degrees, and 1.2 degrees. So the second point, why climate has changed? What is the reason for climate change? Only one reason. What? Energy and carbon dioxide. Okay. Let's come to the point number 3. Very interesting point. Who has changed the climate? किसने change किया? What do you think? किसने किया? इंसानों ने किया, right? तो सर जब भी मैं लोगों से पूछता हूँ, जितने पढ़े लिखे होशियार इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनसे पूछता हूँ, अच्छा बताओ मैं क्लाइमेट चेंज किसने किया, तो पता है क्या बोलते हैं? इंसानों ने किया, मैंने थोड़ी किया है. फिर बोलता अच्छा हेलो, इंसान नहीं हो गया तुम? फिर दे करेक्ट आंसर. बताओ क्लाइमेट चेंज किसने किया है? हमने किया है. दैट इज आल्सो रॉन्ग. वो भी नहीं है. यू नो व्हाई? बिकॉज़ व्हेन वी से हमने मतलब किसी ने नहीं किया, कोई जिम्मेदार नहीं, राइट? पर असली क्लाइमेट आनंद कौन लेगा इस समय? I'm taking, I'm using. Who is enjoying the chair? You are doing it. Who is going to eat the food today? You are going to do. Who is wearing the nice clothes? You are doing it. So who has caused the climate change? मैंने किया. I have done it, and I do it by 2 ways. दो तरीके से करता हूँ. Directly because I am consuming energy directly, electricity, food, travel, but also indirectly because I am consuming clothes, water, furniture, cement, concrete, road, ये सब से. इसलिए right thing to say climate change किसने किया है? मैंने किया. हमारे पंचतंत्र में एक कहानी है. एक समय की बात है, एक व्यक्ति था, पेड़ के जिस ब्रांच में बैठा था उसी को काट रहा था. ऐसे व्यक्तियों को क्या बोलते हैं जो उसी ब्रांच जिस पे बैठे उसी को ऐसे रखते हो क्या बोलते हैं? मूर्ख, स्टूपिड, फूलिश. मैं देखता हूँ एक तरफ देश का जीडीपी कैसे बढ़ रहा है और दूसरी तरफ नेचर डिग्रेड हो रहा है. अच्छा नेचर क्या है? जो हमारे जीवन को नर्चर करता है, जिसके बिना जी नहीं सकते. कंप्यूटर के बिना जी सकते हैं, मोबाइल फोन के बिना जी सकते हैं, घर के बिना नहीं जी सकते, परंतु बिना सांस नहीं जी सकते, बिना पानी नहीं जी सकते, बिना खाना खाए जी सकते नहीं. One of 3 most important things that you need for living on this planet is air, water and soil. ये 3 चीजें हैं जिससे ना जीवन नहीं चल सकता. Can you guarantee that air that you are breathing is without any pollution? No. Can you guarantee आप गंगा में जाके एक गिलास पानी पी सकते हैं बिना फिल्टर के? नहीं. क्या आप जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल नहीं, ऐसा कोई गारंटी कर सकते हैं? नहीं कर सकते. जो जीवन का आधार है, जिसके बिना जी नहीं सकते, हवा, पानी, मिट्टी, वो सब की हालत खराब. एक जमाने में गंगा मैया में डुबकी लगाते थे तो क्या होता था? सारे पाप धुल जाते, है ना? आज गंगा में डुबकी लगाओ तो क्या होगा? 2-4 पाप घर आ जाएंगे.
क्या हालत कर दी, तो जीडीपी बढ़ रहा है पर नेचर डिग्रेड हो रहा है, तो मन में प्रश्न आता है, दिस इज अ मॉडर्निटी और स्टूपिडिटी? आधुनिकता है कि मूर्खता है? हेलो, आधुनिकता है कि मूर्खता है? हाइट ऑफ मूर्खता, राइट? उसी पानी को कैसे खराब कर सकते हो जो तुम्हें दूध पीना है, उसी हवा को कैसे खराब कर सकते हो जो तुम्हें खुद सांस लेना है, और उसी मिट्टी को कैसे खराब कर सकते हो जिससे तुम्हें खुद खाना खाना? हाइट ऑफ स्टूपिडिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? जोर से बोलो। अच्छा, ऐसा नहीं जो मैं नहीं बोल रहा हूँ मूर्ख नहीं, वो भी है, पर बेचारा शर्मा रहा है। आज अचानक जीवन में पता चला, अभी तक तो सोच रहे थे कि वो इंटेलिजेंट है, आज अचानक पता चला कि मैं तो मूर्ख। कौन है? मैं, क्योंकि मैं ही ये सब करता हूँ, सरकारें नहीं करती, इंडस्ट्री नहीं करती, मैं। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्लाइमेट चेंज किसने किया है? मैंने किया। And that is the whole problem that people don't understand and they keep doing something else. I am the cause of climate change. आप शायद बोलना भूल गए, पर आप बोल सकते हैं, तो सच हम सबने एग्री किया है कि हम सब लोग मूर्ख हैं। तो आप नहीं थे तो आप बोल सकते हैं कि हम मूर्ख हैं। Thank you. All right, that comes to point number 4. When to correct? क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी के कारण हुआ, मैंने यही समझ गया। When to correct? कब इसको ठीक करना चाहिए? What do you think? कब करना चाहिए? Right now, because the climate scientist tells us कि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। Ideally maximum 2 डिग्री, ideally 1.5 डिग्री। And the question is why 1.5 डिग्री से? क्या होने वाला है 1.5 डिग्री से? क्या अचानक प्रलय आएगा, सब लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, चिंता मत करो, इतनी आसान मौत नहीं मिलने वाली। अचानक प्रलय आएगा तो लोग मर जाएंगे, वो हो जाए तो बहुत ही सरलता हो, इतनी आसानी से नहीं मरोगे। नेचर इतनी आसानी से नहीं मारेगी। पता है नेचर हमको कैसे मारने वाली है? एक मूवी में एक खतरनाक विलन होता है, हीरो को कैसे मारता है? तड़पा के। तो नेचर हमको कैसे मारेगी? ये सबको अच्छे से जोर से बोलना चाहिए, और आज रात को जब सो नहीं रहा हो तो एक बार याद कर लेना। नेचर हमको कैसे मारने वाली है? तड़पा के। तो जब 1.5 डिग्री हो जाएगा तो जो क्लाइमेट में चेंज है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, और 2 डिग्री होते होते पूरा इरिवर्सिबल हो जाएगा। उसके बाद दुनिया के सारे लोग डिसाइड करें कि हम साधु संत बनने के आज के बाद कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक रिमोट पे जिएंगे, फिर इन क्लाइमेट को रिवर्स नहीं कर सकते क्योंकि वन वे प्रोसेस। ये लक्ष्मण रेखा है, अगर खुद क्रॉस कर दे तो वापस नहीं आ सकते। इसलिए जो भी करना है कब करना चाहिए? राइट नाउ, अभी करना चाहिए। आप लोग कुछ करना चाहते हैं टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए? कुछ करना चाहते हैं? सिर्फ 10-12 लोग ही कुछ करना चाहते हैं? माय गॉड, कुछ करना चाहते हो? यस, वेरी गुड। एक दूसरी प्रॉब्लम ये है कि टाइम नहीं है। क्यों? टाइम में इतना डिपेंड करता है 2 पैरामीटर्स पे। 2 पैरामीटर पर डिपेंड करता है। दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है कितना समय बाकी है। किस पर डिपेंड करता है? हमारे पास कितना कार्बन बजट है। 2021 में 21 में कार्बन बजट 280 बिलियन टन का था। Looks like a big number, right? 280 billion ton. But look at this number. Rate of carbon emission. Can you all read this number? ये नंबर को पढ़ सकते हैं? कितना है? कितना है? 14 lakh kilogram of carbon dioxide is emitted in how much time? 1 second. और 1 सेकंड कितना होता है? 1 सेकंड 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। आप बताओ बेचारे पेड़ पौधे कब तक इतना एब्जॉर्ब करेंगे? समझ आएगा? तो पेड़ पौधों से तो ये ठीक नहीं होने वाला, क्योंकि 1 सेकंड मात्र में 14 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करते हैं। जब मैं एक सेंटेंस बोलना चालू करता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, तो करीब 100 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड वहां पर। ये 2 नंबर को इससे इस नंबर को इससे भाग देंगे तो जो संख्या आएगी वो इस घड़ी में बनता है। इट इज कॉल्ड क्लाइमेट क्लाउड।
So climate clock tells us how much time is left before we touch global warming of 1.5 degree centigrade. आपको दिख रहा है climate clock? आप मेरे को नंबर बताएं, कितने साल, पहला नंबर है साल का, कितने साल बाकी है? 5 years. दिन कितने बाकी है? 312 दिन. और घंटे 11 मिनट 16 सेकंड 50. That's it. 5 years only. We don't have 50 years. We don't have 5 years. We don't have time to correct it. जो भी करना है अभी करना पड़ेगा. Is the point here? So when we do this, there is a climate clock. हमने किस climate clock का प्रोजेक्ट बनाया. We keep giving climate clocks away. And आप यदि चाहो तो एक प्रोग्राम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. हमने एक DIY किट बनाया और उसमें हम सबको ट्रेनिंग देते हैं और हार्डवेयर भी फ्री में देते हैं. एक बड़ा प्रोग्राम हम कई गुजरात में कर सकते हैं. ऑलरेडी ये उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, कई सारे जगह हो चुका है. Alright, so time is running out. जो भी करना है अभी करना है. That brings me to point number 5. कैसे डील करें, क्या करें? प्लांटेशन तो नहीं होने वाली है, हमने समझ लिया, right? How to correct this, because there is no other planet. और कोई दूसरा ग्रह नहीं है. जो भी करना है तो इधर ही करना है. You are not rich like Elon Musk. ये प्लेनेट छोड़ के भाग जाओ. इतने पैसे वाले नहीं हो. तो इससे बेटर है कि यहीं पे कुछ करें. क्या करना चाहिए? How do we correct it? ये सबसे इम्पोर्टेंट है समझ. How do we do this? क्योंकि ये नहीं समझोगे तो सब लोग कुछ न कुछ करते रहते हैं. पेरिस एग्रीमेंट हुआ, याद है? कॉप मीटिंग हर साल होती है. क्योटो प्रोटोकॉल हुआ. गवर्नमेंट कुछ करती रहती है. एनजीओ से हजारों जो क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं. पर फैक्ट तो ये है कि क्लाइमेट चेंज तो स्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, बल्कि हर साल बिगड़ रहा है. क्यों? क्योंकि कैसे ठीक करना है ये पता नहीं. यहाँ तक कि बड़े बड़े जो थिंक टैंक होते हैं देश में, नीति आयोग फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक सही उनको भी नहीं समझे कैसे ठीक करना है. इसलिए हर साल क्लाइमेट पहले से बिगड़ गया. कैसे ठीक करना है? आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, विश्व की सबसे बड़ी बॉडी. 195 countries are the members, and they have come up with a report. Climate change करना है, कैसे करना है? Change in energy sources. जैसे भी यदि किसी को कैंसर हो जाए तो पैरासीटामोल लेके कैंसर ठीक कर सकते हैं? नहीं. यदि कैंसर को ठीक करना है तो कैंसर के रूट कॉज को खत्म करना पड़ता है, कीमोथेरेपी करना पड़ती है, कैंसरस सेल्स को बॉडी से हटाना पड़ता है, राइट? ठीक उसी तरह से कि क्लाइमेट चेंज हो गया है तो क्लाइमेट चेंज का रूट कॉज क्या है? कार्बन बेस्ड एनर्जी. तो हमें क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है तो कार्बन बेस्ड एनर्जी को कम करके जीरो पर लाना पड़ेगा. देयर इज नो अदर चॉइस. इज द पॉइंट क्लियर? देयर इज नो अदर चॉइस. यू कांट डू एंड यू कांट फील की ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी वैसा, वो नहीं होने वाला है, नहीं हो रहा है. पिछले 40 साल में हम देख रहे हैं दुनिया भर में इतने नियम बन रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल, क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो तरीका गलत है जो दुनिया में. तो हमें जो रूट कॉज को हटाना पड़ेगा कार्बन बेस्ड एनर्जी को, और वो हटाने की भी दो कंडीशंस हैं. हटाना तो पड़ेगा पर दो कंडीशन है. कैसे हटाना पड़ेगा? ड्रास्टिक चेंज करना पड़ेगा. चेंज करना है तो चेंज कैसा होना चाहिए? ड्रास्टिक, बहुत बड़ा. और दूसरा क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? Immediate, right now. तब जाके. Now tell me, have you seen any organization, any institution, any government which is making drastic and immediate change? को देखा है? नहीं? तो ठीक नहीं है. पर यही तरीका है drastic and immediate change. इसके अलावा कुछ भी करोगे, यदि एनर्जी को drastically और immediately change नहीं किया, इसके अलावा जो भी करोगे वो feel good factor, मन को अच्छा लगने वाला काम होगा. क्लाइमेट को कुछ फर्क नहीं पड़ता. बात समझ आ रही है? कुछ गर्दन ऐसे है ब्रेक, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. हाँ समझ में आया कि ऐसे ही था. समझ आ रही है? यस. मन को अच्छा लगने वाला काम बहुत सारे लोग करते हैं. जैसे पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को, राइट? कितने सारे लोग पेड़ लगाएंगे, ये करेंगे, कुछ नहीं होने वाला. उससे पर्यावरण को कुछ बिगड़ने वाला नहीं. क्यों? क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रॉब्लम इज मच हायर देन द रेट ऑफ सॉल्यूशन.
इज दैट पॉइंट क्लियर? आपका प्रॉब्लम इतनी तेजी से बढ़ रहा है, आपका इसमें छोटा सा सॉल्यूशन कुछ का वेट लगाना अच्छी बात है, वेट लगाना चाहिए, रोज लगाना चाहिए, परंतु वेट लगाने से क्लाइमेट रुकेगा, ऐसे गलत करने में नहीं रहना चाहिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके, ड्रास्टिक इमीडिएट चेंज क्या करना, ऐसा कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम अपने ज्ञान में फंसे हैं। दिस इज एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमने सबने एग्री किया हम सबको ग्रोथ चाहिए, ऐसा ना? ग्रोथ करने के लिए क्या लगता है? एनर्जी, है ना? और 85% एनर्जी कहां से आती है? कोल गैस, और उसके कारण क्या होगा? 85% कार्बन से, उसके कारण कार्बन एमिशन में, उसके कारण क्या होगा? क्लाइमेट चेंज। तो ग्रोथ चाहिए तो साथ में क्या मिलेगा? क्लाइमेट चेंज मिलेगा। ना टेल मी व्हाट इज सच बताना क्या चाहिए? ग्रोथ चाहिए कि क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन चाहिए? क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है। पर मैंने एक हमेशा ऑब्जर्वेशन रहा है, जितने भी आगे की लाइन में लोग बैठे रहते हैं वो सब नहीं बोलते क्लाइमेट, जैसे ये वैसा सर नहीं बोला, इन्होंने भी नहीं बोला। पता क्यों? क्योंकि 20 से 40 साल में ये लोग चले जाएंगे। इनको ज्यादा फर्क है। और जो बच्चे होते हैं ना उनको धरती पर ज्यादा रहना है ना, 60 साल रहना है, 70 साल रहना है, 80 साल। इसमें यंग लोगों को हमेशा लगता है कि क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशन ज्यादा उचित है, पर जो बड़े लोगों को उनको लगता नहीं क्लाइमेट कैसे करेंगे। बात समझ में आ गई ना? इसलिए जो भी करना है तुम्हें अभी एक्शन लेना पड़ेगा। पॉइंट व्हाई, बिकॉज़ क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने के लिए हमें एनर्जी के सप्लाई को कम करना है और ग्रोथ के लिए एनर्जी के सप्लाई को बढ़ाना है। एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, opposing each other, and that is why creating a balance if you can is a great thing. यदि हम ऐसा कुछ कर सकें कि ग्रोथ होगा परंतु क्लाइमेट चेंज ना हो, यदि ऐसा कर सके, आज तक ऐसा किसी ने करके दिखाया नहीं है कि ग्रोथ भी हो रही है और क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा, ऐसा किसी ने नहीं किया, राइट? यदि ऐसा कर सकें तो उस व्यक्ति जो ऐसा करके दिखा देगा उसको एक तो नोबेल प्राइज नहीं 8-10 नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, है ना? इतना बड़ा, क्योंकि मनुष्य जीवन के अस्तित्व का सवाल है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सवाल नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि मनुष्य का जीवन आज के 80 साल बाद, 100 साल बाद, 150 साल बाद इस धरती पर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो ये सॉल्यूशन करना है, ग्रोथ हो जाए परंतु क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है। आप में से किसी को नोबेल प्राइज चाहिए? अरे हाँ, अरे वेरी गुड, कुछ लोगों को वेरी गुड। जिन लोगों ने हाथ खड़ा किया उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। अच्छा, बाकी लोगों को भी लगे जीवन में कहीं बहुत हो गया, मेरे को कुछ अच्छा काम करना, नोबेल चाहिए, तो क्या करना? ये काम करना, क्या? Ensure that there is a growth without affecting climate change, पर ये हमारा काम हो सकता है। एंड मेरे पास एक सॉल्यूशन, कैसे करेंगे? तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? ड्रास्टिक इमीडिएट चेंज इन एनर्जी, ये हमारी रिक्वायरमेंट। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? यदि हम 100% सोलर पर स्विच हो जाए, 99 100%, तो क्या ये ड्रास्टिक चेंज कहलाएगा? यस सर, यस। और आज शाम तक हो जाए तो विल दैट बी इमीडिएट चेंज? हो गया सॉल्यूशन, ड्रास्टिक इमीडिएट, सब लोग सोलर पर स्विच हो जाए, शाम तक हो जाए। बात समझ में आई? यदि आपको सच में बात समझ में आई तो आज शाम को घर जाके तो एक काम करें। क्या काम करेंगे? एक लव लेटर लिखेंगे। इसको लिखेंगे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को नहीं लिखना है, गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लिखेंगे। और क्या लिखेंगे उसमें? डियर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आज तक हम आपसे बिजली ले रहे थे, परंतु आज हमारी आंखें खुल गई हैं, इसलिए हमने डिसाइड किया हमारी बिजली खुद पैदा करेंगे, इसलिए आपके कनेक्शन की जरूरत नहीं है, कृपया अपना कनेक्शन वापस लीजिए, आपका आभारी, धन्यवाद। करेंगे? आज नहीं तो इस महीने जरूर कर लेना, और इस महीने नहीं तो इस साल में कर लेना, और इस साल नहीं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने जल्दी हो सके अपनी लाइफ को 100% सोलर पे स्विच कर लेना। इट इज नॉट योर चॉइस एनीमोर। ये पसंद ना पसंद का सवाल नहीं बचा है, ये अस्तित्व का सवाल है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सब लोग सोलर पे स्विच हो जाएंगे जल्दी से जल्दी? कितने लोगों के? वेरी गुड। अच्छा, जो इन्होंने हाथ नहीं उठाया मैं उनको एक बार रिमाइंड कराना चाहता हूँ कि धरती पर तुम्हें ही वापस बचना है, तो करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर चॉइस। अच्छा, आप में से कितने लोग अभी सोलर का उपयोग करते हैं? वेरी गुड। ये भी एक प्रॉब्लम है,
देश की, पता है? अच्छा, आप में से कितने लोग रोज खाना खाते हैं? कुछ लोगों को इसमें भी डाउट होता है रोज खाना खाते कि नहीं खाते। बिना सोलर एनर्जी के खाना पैदा हो सकता है क्या? नहीं ना? आप में से कितने लोग हमेशा श्वास लेते हैं? हम लोग लेते हैं। बिना सोलर एनर्जी के ऑक्सीजन पैदा हो सकता है क्या? नहीं। बिना सोलर ऊर्जा के वाटर साइकिल नहीं चल सकता, पानी नहीं गिरेगा। इसका मतलब है कि आप श्वास लेते हो, खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो सोलर एनर्जी का उपयोग करते हो, है ना? तो मैं एक बार फिर से पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं? अरे वाह, सब लोग करते हैं। चलो फाइनली अच्छी बात है, आपको पता चल गया कि आप सोलर एनर्जी का उपयोग करते हो। बहुत सारे लोग बेचारे मरते दम तक पता नहीं चलता है, जो सोलर एनर्जी में जी रहे थे। हमारे अस्तित्व का कारण ही सोलर एनर्जी है। धरती पे एक सत्ता भी बिना सोलर एनर्जी के नहीं मिलता। यू अंडरस्टैंड दैट? कोई भी जीवन पॉसिबल नहीं, कोई भी जंतु, जीव जंतु, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधे, इंसान, किसी का भी जीवन बिना सोलर ऊर्जा के पॉसिबल नहीं है। सोलर ऊर्जा हमारे अस्तित्व का केंद्र है। हम रास्ता भटक गए, हमने कोल और पेट्रोल और डीजल पे अपना जीवन आधार बना लिया। हिंदी में कहावत है, जहाज का पंछी यदि रास्ता भटक जाए तो उसको वापस जहाज पे आना पड़ता है। मनुष्य लोग रास्ता भटक गए, सोलर को छोड़ के कहीं और चले गए। हमें चॉइस नहीं थी, हमें जीवन में बचा के रखना है तो वापस 100% सोलर पे आना ही पड़ेगा, नो अदर चॉइस। क्लियर? वेरी गुड। सो आना पड़ेगा, बट बी केयरफुल, है ना? क्यों? क्योंकि हम जो आधुनिक मनुष्य, हम लोग एक्सपर्ट हैं। किस काम में एक्सपर्ट है पता है? हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और दूसरी, ये देखो सबको पता है ऐसे करें। मैंने बोला भी नहीं, दूसरी लाइन कौन से बोल रहे हो? क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व करते दूसरी खड़ी करते। अच्छा, हम आधुनिक हो गए ना, पहले एक करते थे, एक सॉल्व एक खड़ी करते थे। अभी क्या करते हैं, आधुनिक हो गए तो क्या करते हैं, एक सॉल्व करते हैं और चार नहीं खड़ी करते। इससे पानी खराब, हवा खराब, मिट्टी खराब, डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, टेंशन बढ़ रहा है, वॉयलेंस बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब कुछ उल्टा हो रहा है धरती पर, पता है सब? एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑपोजिट। So be careful for using solar energy also. Solar energy का उपयोग बहुत सोच समझ के करना है। मैंने 2 नियम लिखे, आप इनको बोल सकते हैं सोलंकी के मनुष्य के जीवन के अस्तित्व के। यदि ये नियम का पालन नहीं किया तो मेरी गारंटी है मनुष्य जीवन धरती पर नहीं बचेगा। आप यूनिवर्सिटी की दीवारों पे लिखिए, 30-40 साल बाद यदि कुछ लोग ऐसा होने लगे तो लोग रिएक्ट करेंगे, नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल लॉस है धरती पर रहने की। क्या लॉस होते हैं? नंबर 1, इन एन इकोसिस्टम ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज देयर हैज टू बी फाइनाइट कंजम्पशन। जो इकोसिस्टम के संसाधन फिक्स हो, उसका कंजम्पशन फिक्स होना चाहिए। बात समझ आई? यदि तुम्हारी सैलरी फिक्स है तो खर्चे फिक्स होना चाहिए। उधार लेके जियोगे तो 6-8 महीने में लोग उधार देना भी बंद कर देंगे। जरूरत नहीं, फिक्स होना चाहिए। क्यों? गांधी जी ने देखो कितने अच्छे तरीके से कहा। गांधी जी ने कहा था, दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त लालच के लिए। सुना था? मैं हमेशा पूछता हूँ, अच्छा गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा? क्या मजबूरी थी 100 साल पहले? क्लाइमेट चेंज तो नहीं था उस समय, नदियां भी खराब थी, कुछ भी खराब नहीं था, इतनी जनसंख्या भी नहीं थी। गांधी जी ने क्यों कहा कि दुनिया में सबकी जरूरत के लिए पर्याप्त है, किसी की लालच के लिए? सबसे देखिए क्या कि धरती का साइज ही फिक्स है। धरती पे जनसंख्या डबल कर लो, ट्रिपल कर लो, 4 गुना कर लो, 10 गुना कर लो, क्या हम सब लोग कि ताकि धरती को बड़ा कर सकते हैं? ठीक है। क्या हमारे साइंस और विज्ञान का उपयोग करके धरती पे एक्स्ट्रा मिट्टी पैदा कर सकते हैं? नो। क्या हम एक्स्ट्रा मटेरियल पैदा कर सकते हैं? खनिज पदार्थ? कुछ नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज फिक्स। मेरे मनुष्य को क्यों लगता है कि नहीं ग्रोथ होना चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, कंजम्पशन बढ़े? ऐसा तो हो नहीं सकता। बात समझ आई? नहीं हो सकता ना, क्योंकि जिससे हम सब लेते हैं पानी, हवा, मिट्टी, सब वो खुद ही फिक्स है, तो तुम्हारा कंटिन्यूअस ग्रोथ कैसे होगा? तो फिर किसी ने मुझसे पूछा, सर ग्रोथ तो होता है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ता है जीडीपी? तो मैंने कहा एक तरीके से बढ़ता है। पता है कैसे? चोरी करके। आप लोग चोरी करते हैं? नहीं करते, देखते चोरी करते हुए। चोरी करने किसको बोलते हैं? यदि किसी से 100 रुपए लिए वापस दे दे तो क्या बोलेंगे? उधार लिए थे। और किसी से 100 रुपए लिए और जीवन भर वापस नहीं दिए तो क्या कहेंगे?
रखना चाहिए लगन के अंदर। हाँ, आधुनिक मनुष्य हम लोग बड़े उस्ताद हो गए, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके चोरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे क्लासिकल एग्जांपल है ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी। आपको पता है, तो ट्यूबवेल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप क्या करते हैं? जमीन से पानी निकालना सीख लिया, पर क्या जमीन में पानी डालना सीखा है? नहीं। तो क्या भारत में जमीन के पानी का लेवल कम होता जा रहा है ना? होता जा रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं पानी की चोरी हो रही? वो जो चोरी करता है उसको क्या बोलते हैं? चोर। चोर कौन है? हम नहीं। हाँ, कितने सुंदर मुस्कुराते चोर लोग बैठे हैं। पर ये समझना जरूरी है कि सच में चोरी का जीवन है। मेरे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने जमीन के अंदर पानी नहीं रखा था जो मैंने निकाल लिया। मेरे पिताजी ने, तुम्हारे पिताजी ने जंगल नहीं लगाए थे जो हमने काट ली। 30% जंगल गायब हो गए। ये जो हम जीवन जीते हैं चोरी का, उसे एक पैरामीटर अर्थ ओवरशूट डे। अर्थ ओवरशूट डे 31 दिसंबर को आना है। धरती की जितनी क्षमता है वो तुम्हारा है। जैसे रोज धूप गिर रही तो आप जितना चाहे उतना यूज करो, जो पानी गिरता है जितना चाहे उतना यूज करो, जो ग्रो होता है जितना चाहे उतना यूज करो, पर जो रिन्यू नहीं होता वो तुम्हारा नहीं है, वो चोरी है। और हमने बहुत बड़ी चोरी सीखी इसलिए क्योंकि धरती फिक्स है, तो धरती पर रहने का पहला नियम क्या? जरूरतें फिक्स होना चाहिए। ये सारे ग्रंथों में लिखा, सारे शास्त्रों में लिखा है। दूसरा नियम, लोकलाइज योर प्रोडक्शन, लिमिट योर कंजम्पशन, लोकलाइज योर प्रोडक्शन। क्योंकि हम जब भी सेंट्रलाइज करते हैं, गांधी जी ने इसको बहुत सुंदर तरीके से कहा था। He said, not the mass production, production by masses. सुना है? Not the mass production, production by masses is required because whenever we centralize our production, it results in unequal distribution. Inequity बढ़ती है, असमानता बढ़ती है। और जब भी समाज में असमानता बढ़ती है तो क्या होता है? अशांति बढ़ती है। और अशांति बढ़ेगी तो हिंसा होगी, वायलेंस होगी। वही हो रहा है पूरी दुनिया में। साइंस बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, इकोनॉमी बढ़ रहा है। ये बताओ, प्रेम भाव बढ़ रहा है, भाईचारा बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। यस, why? Because we are following the wrong model. तो जो भी करना है ये दो नियम का पालन करके, जो भी आप दुनिया में उपयोग करो ये दो नियम का पालन करें। समझ में आया? जैसे पानी का उपयोग करना है, तो पानी का उपयोग करने का नियम क्या है? पहला नियम क्या है? लिमिट योर कंजम्पशन। मतलब क्या करना चाहिए? पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बात टब में नहीं नहाना चाहिए। कभी कभी नहीं नहाओ तो उसकी अच्छी बात है, कभी कभी हमेशा रिड्यूस योर कंजम्पशन एंड लोकलाइज योर प्रोडक्शन मींस लोकल रिचार्ज करो, अपना पानी लोकल रिचार्ज करो। खाना खाना है तो लिमिट योर कंजम्पशन मींस खाने को वेस्ट मत करो। लोकलाइज योर प्रोडक्शन मींस लोकल पैदावार खाना खाओ। ऐसा नहीं है कि आलू तुम्हारे 500 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, 1000 किलोमीटर। कपड़े भी पहनना है तो पहला नियम क्या? लिमिट योर कंजम्पशन। मतलब क्या? इसका मतलब होता है कि अलमारियां भर भर के कपड़े मत रखो, वरना आजकल लोग इतना सरल हो गया कपड़े खरीदना, तो लोगों के अलमारी में इतने कपड़े रहते हैं, कई सारे जो जोड़े होते कपड़े के बेचारे साल भर मालिक का रास्ता देखते हैं, मेरा मालिक मुझे कब पहनने वाला है। होता है ऐसा? कुछ लोग सुनाई कर ऐसा होता ही होगा। कुछ साड़ियां बेचारी कभी नंबर आता होगा। भगवान के नाम पे ऐसा मत करो क्योंकि धरती भी है। और लोकलाइज प्रोडक्शन मतलब लोकल बना कपड़ा पहनो। और जो सबसे खतरनाक चीज हम यूज करते हैं वो है एनर्जी। यदि एनर्जी का उपयोग करना है तो पहला नियम क्या है? अपनी एनर्जी की जरूरतों को कम करो। दूसरा, कम जरूरतों को लोकल करो। ये नियम का अपना है, सब जाके सस्टेनेबल हो सकता है। बात समझ आ रही? ओके, लिमिट एंड लोकलाइज। एंड द लास्ट पॉइंट, व्हाट एन इंडिविजुअल कैन। एक आदमी क्या कर सकता है? अच्छा, क्लाइमेट चेंज किसने किया? नहीं, तो ठीक कौन करेगा? एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है उसको डिस्कस करते हैं। ये तो हमने देखा पूरी दुनिया एनर्जी का खेल, तो गलत एनर्जी उपयोग करना इससे गड़बड़ है दुनिया में। सही एनर्जी का उपयोग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इस खेल को सही करना है। बट अभी दुनिया में क्या चल रहा है, हम जो कर रहे हैं उसी में थोड़ा रीथिंक करते हैं, थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रिक करते हैं, थोड़ा ग्रीन, उससे नहीं होने वाला। वी हैव टू रीथिंक एंड रीडिजाइन। पूरी तरह से फिर से सोचना पड़ेगा कैसे हमारी एनर्जी की जरूरत को लोकल पैदा करें, लोकल पूरी करें, ताकि हम सस्टेनेबल पाए। इसलिए मैंने एक 3 स्टेप अप्रोच सोलर पे जाना पड़ेगा, पर सिस्टमैटिक तरीके से जाना पड़ेगा। और ये 3 स्टेप अप्रोच, इसका नाम है AMG अप्रोच, अवॉइड, मिनिमाइज, इंटरप्रेट।
देखते हैं अवॉइड मिनिमाइज जनरेट क्या है। फर्स्ट स्टेप है अवॉइड द यूज ऑफ एनर्जी एज मच एज पॉसिबल इवन इफ इट इज सोलर। सोलर एनर्जी को उपयोग करने का पहला नियम क्या है? सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। आश्चर्य की बात है, मैं प्रोफेसर सोलर एनर्जी का, मैं ब्रांड एम्बेसडर सोलर एनर्जी का, लोग मुझे सोलर मैन सोलर गांधी बोलते हैं। मेरा काम है सोलर को प्रमोट करना, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सोलर एनर्जी का उपयोग करने का पहला नियम क्या है? सोलर का भी उपयोग मत करो। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो आप मैन्युफैक्चर करो साइड इफेक्ट ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जैसे मैंने टूथब्रश का एग्जांपल दिया, वैसे ही सोलर पैनल बनाना है तो आपको सिलिकॉन बनाना है, सिलिकॉन क्रिस्टल बनाना है, सोलर सेल बनाना है, फिर उसे मॉड्यूल बनाना है, मॉड्यूल बनाने के लिए ग्लास चाहिए, उसको बनाने के लिए पेपर फ्रेम चाहिए, मॉड्यूल को खड़ा करने के लिए लोहे का स्ट्रक्चर चाहिए, उससे पावर निकालने के लिए कॉपर केबल चाहिए, वो पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर चाहिए, और यदि स्टोर करना तो बैटरी चाहिए। तो ये सारे कंपोनेंट को उसकी लाइफ के एंड में रिसाइकल करना है, फिर से एनर्जी, फिर से केमिकल, ये सब कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा, जीरो तो नहीं होगा। बात समझ में आई? इसलिए लाइफ में सबसे बढ़िया काम क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, कुछ कर करके अपने दुनिया की इससे हालत खराब कर देते हैं। इससे बढ़िया कुछ मत करो, है ना? वैसे भी हम अध्यात्म से कहते हैं जीवन में सबसे गहरा आनंद कब आता है? Deepest joy in life comes from the deepest meditation. ध्यान करने से सबसे गहरा आनंद आता है, राइट? तो ध्यान करने में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, राइट? ध्यान करना कुछ नहीं करते, राइट? इसलिए सबसे बढ़िया लाइफ में काम क्या है? कुछ मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि बायोटेक डिपार्टमेंट में सबसे पढ़ाई बंद कर वरना बच्चे कुछ हो गया कि करने होगा कुछ करना जरूर करना है, पर अवॉइड करो। दैट इज द बेस्ट थिंग। इंग्लिश में कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो सोलर एनर्जी का उपयोग करना इज बेटर क्योर, पर किसी भी एनर्जी का उपयोग नहीं करना इज प्रिवेंशन, व्हिच इज 1000 टाइम्स। यदि आपने नहीं किया तो 1000 गुना किया। आपने सोलर की अच्छी बात है, पर सोलर का उपयोग भी नहीं किया तो 1000 गुना अच्छी बात। अवॉइड करना चाहिए। कैसे अवॉइड करना चाहिए? क्या अवॉइड कर सकते हैं? बताओ क्या अवॉइड कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इतने सारे ट्यूबलाइट चल रहे हैं, लेकिन इसमें से मैं 3 ट्यूबलाइट बंद करूं तो इस हॉल में कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। इसका मतलब जो 3 ट्यूबलाइट चल रही है तो एक्स्ट्रा चल रही है ना? इसका नहीं हो राइट से देख सकते हैं, पीछे भी 1 2 3 4 ट्यूबलाइट बंद कर सकते हैं, और फिर से राइट आ रहा है, पीछे भी 4 ट्यूबलाइट बंद कर, ठीक है? एक दो वेरी गुड, बस इतना। हमने ऑलमोस्ट 7-8 ट्यूबलाइट बंद कर दी। अच्छा, ये 7-8 ट्यूबलाइट बंद होने के बाद में क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? भी आपको देख पा रहे हैं? अच्छा, ये 7-8 ट्यूबलाइट बंद होने के बाद में आपको बेचैनी हो रही, ऐसे कुछ उल्टी का मन हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? ट्यूबलाइट हम यूज कर रहे थे, यूज नहीं कर रहे थे, क्या कर रहे थे? मिसयूज कर रहे थे। तो हम इतने बिगड़े हुए लोग हैं कि हम बहुत सारी चीजों को मिसयूज करते हैं। जीवन भर करते हैं, घर में करते हैं, बाहर करते हैं, ऑफिस में करते हैं, कॉलेज में करते हैं, पब्लिक ऑफिस सब कुछ करते हैं। इसलिए सबसे बड़ा काम क्या करना चाहिए? अवॉइड। समझ आया? और क्या अवॉइड कर सकते हैं? कैसे अवॉइड कर सकते हैं? मैं तो आप ही अवॉइड करा दी, आप लोग भी अवॉइड कर सकते हैं। मैंने जब अपने घर पे देखना चालू किया क्या क्या अवॉइड कर सकते हैं, तो मेरी सबसे पहले नजर गई फ्रिज के ऊपर। फ्रिज को अवॉइड कर सकते हैं, क्या लगता है? अवॉइड कर सकते नो? यस। अच्छा, सबको भगवान कृष्ण सुना है ना? सब भगवान कृष्ण को दूध दही माखन इतना पसंद था, राइट? हमने भगवान कृष्ण के इतने सारे पोस्टर देखे, किसी पोस्टर के बैकग्राउंड में फ्रिज का फोटो देखा? इसका मतलब कृष्ण भगवान बिना फ्रिज के रहते हैं। सदियों से इंसान बिना फ्रिज के रहता था, अभी हम बिगड़े हैं। कब से बिगड़े? पिछले 30 सालों से हमको फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, कूलर चाहिए। अवॉइड करना चाहिए। मेरे घर पे ना फ्रिज है, ना गीजर है, ना एसी है। मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस करना भी बंद कर दिया। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं गरीब आदमी, आईटी का प्रोफेसर तो मैंने अफोर्ड कर सकता हूं।
खास बात है कि ये सब बंद करने से ऐसा नहीं कि दुखी हो गए, दुखी लग रहा है भगवान मैं ऐसा नहीं कर रहा। अच्छा उससे भी खास बात है पता है, मेरी शादी में 20 साल हो गए, मुझे वाइफ ने अभी तक तलाक भी नहीं दिया। कहने का मतलब है कि आप लोग ऐसा करोगे तो आप लोग भी कोई छोड़ के भागने वाला नहीं, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और एक और कारण है क्यों अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब हम फ्रिज का उपयोग एक दिन के लिए करते हैं, एक दिन के लिए, तो फ्रिज के ऊपर रेटिंग लिखा रहता है, आपको देखिए है ना, एक दिन का फ्रिज का उपयोग मतलब 1 यूनिट बिजली लगभग, है ना। एक बार गर्म पानी से नहाते हैं तो गीजर 2-3 किलोवाट का होता है, एक बार गर्म पानी से नहाने का मतलब 1 यूनिट बिजली। एक बार घंटे में 1 घंटे एसी में बैठते हैं तो 1 यूनिट बिजली लगती है, और 1 यूनिट बिजली के कारण लगभग 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, क्योंकि भारत में 74% बिजली कोयले से आती है, और 1 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है, हवा में कब तक रहेगा, कितने साल तक, 300 साल तक। इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हारा जो एक दिन का फ्रिज का उपयोग करने का जो सुख है, उसका दुख कब तक भुगतना है, 300 साल। और कौन भुगतेगा, मैं तो मर जाएगा ना 300 मैं 300 साल के बचने वाला, कौन भुगतेगा, आने वाले जनरेशन। किसकी आने वाली जनरेशन, तुम्हारी पड़ोसी की नहीं। मैं इसलिए हमेशा याद दिलाता हूँ ताकि तुमको एहसास रहे कि तुम्हारे खुद के बच्चे और तुम्हारे खुद के नाती पोती ये सब भुगतने वाले हैं जो तुम करने वाले। और 300 साल मतलब 10 पीढ़ियों तक इसका असर रहेगा, राइट। तो ऐसा काम जो तुम करो तुम्हारी 10 पीढ़ियां भुगतती रहे, इससे काम को क्या कहेंगे, तुम करो तुम्हारी 10 पीढ़ियां भुगतती रहे, ऐसे काम को क्या कहेंगे, पाप है, किसी पाप से कम नहीं है ना। तो जो पाप करता है उसको क्या बोलते हैं, पापी। और पापी कौन है, हाँ मेरा लेक्चर सफल हो गया। यही उद्देश्य था, सबको एहसास दिलाना कि हमसे बड़ा गुरु, हमसे बड़ा चोर, हमसे बड़ा पापी इस धरती पर है। ऑलराइट, तो सबसे बढ़िया काम क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। 1/3 एनर्जी की जरूरत को अवॉइड करना, अवॉइड नहीं कर सकते, नेक्स्ट स्टेप है मिनिमाइज करना। मिनिमाइज करने का मतलब क्या है, एफिशिएंट अप्लायंस का उपयोग करना जो कम से कम एनर्जी में। फॉर एग्जांपल एलईडी लाइट है ना, एलईडी लाइट नॉर्मल फ्लोरोसेंट लाइट की तुलना में आधी इलेक्ट्रिसिटी लेता है, इसका मतलब आधा कार्बन एमिशन का होगा। ये जो पंखे हैं मोस्ट लाइकली ये इंडक्शन मोटर वाले पंखे हैं, इनको अवॉइड आप ही हटा देना चाहिए। और आजकल नए पंखे आ गए बीएलडीसी ब्रशलेस डीसी मोटर, ये 70 वाट पावर लेगा, वो 30 वाट में चलता है, तो आधी बिजली मतलब आपका कार्बन एमिशन करके मिनिमाइज कर लिया आपने, है ना। और क्या करना चाहिए, फ्रिज का उपयोग अवॉइड करना चाहिए, पर अवॉइड नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। फ्रिज का उपयोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, फ्रिज का उपयोग मिनिमाइज कैसे करेंगे, सबसे बढ़िया काम है 2 दरवाजे 3 दरवाजे 4 दरवाजे वाले फ्रिज नहीं लेना चाहिए, वरना आजकल लोग क्या करते हैं फ्रिज में कमरा बनाने लगते, इतना बड़ा फ्रिज लेते हैं। फिर काका क्या करता है पता है, मैं देखा इतना बड़ा फ्रिज लेके क्या करते हैं, उसमें लोग अचार भर के खाते हैं। भाई अचार तो बाहर रखने के लिए बना होता है, तो मुझे लगता है फ्रिज में अचार रख के खाना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। आप लोग करते हैं, नहीं करते, वेरी गुड, उसको जरूर करते हो, क्योंकि बड़ा पहले इसको भरना है ना, किसी बोला भर के रखना, तब क्या अचार भरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। एक्चुअल में आपको फ्रिज चाहिए भी, मेरे घर पे नहीं है पिछले 6 साल से, मेरे गांव में इतने सारे घर हैं, हार्डली 4-5 घरों में फ्रिज है, पर सबके यहाँ गाय और भैंस है, मतलब दूध खराब नहीं होता बिना फ्रिज। आपको चाहिए तो एक छोटा सा 50 लीटर का क्रिटिकल जरूरत के लिए ले सकते हैं, थोड़े बहुत मिनिमाइज करना कि आपका फ्रिज 50 लीटर हो जाए तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट छोटी रहेगी। एसी का उपयोग करना नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, तो करना ही पड़े तो क्या करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए। कैसे मिनिमाइज करना चाहिए एसी को, सबसे बढ़िया काम पहले समझने की एसी करता क्या है। एसी क्या करता है, हमारे बेडरूम में एसी क्या करता है, छत को ठंडा करेगा, फिर दीवारों को ठंडा करेगा, फिर फर्नीचर को ठंडा करेगा, जमीन को ठंडा करेगा, आखिर में जाके छोटा सा शरीर को ठंडा करेगा, 2 फीट का शरीर। कितना बदतमीज तरीके से यूज करते हैं एसी का, ठंडा इतना करना है तो दुनिया भर को ठंडा करना है। तो यदि एसी को मिनिमाइज करना तो सबसे बड़ा क्या, छोटा सा बेडरूम बनाना,
है ना, आजकल एयरपोर्ट पे होता है कि पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, मतलब 2 फीट पर 4 फीट 3 फीट इतने होता है, तो नहीं ठंडा, तो बहुत कम एनर्जी में आपका काम चल जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी जगह को ठंडा नहीं करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, ठीक है। मिनिमाइज कितना, वर्कर मिनिमाइज कर देना चाहिए, वर्कर अवॉइड कर देना चाहिए। फिर ये भी नहीं होगा तो आखिरी काम है जनरेटर। जनरेटर कितना, सिर्फ वर्कर, तो कहाँ पे, अपनी छुट्टी। एक बार मैं मेरी यात्रा गुजरात गई थी, मेरी 1.5 साल पहले मैं अहमदाबाद में था, तो मैंने बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए देखे छत पे, इतना कुछ हो गया, वाह इतना सारा सोलर यूनिट गुजरात में। 15 दिन में मेरी खुशी चली गई। ऐसे में लेक्चर दे रहा, तो लेक्चर के बाद में प्रोफेसर मेरे पास आए, बोलते सर थैंक यू वेरी मच, आपने आंखें खोल दी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले थे सर मेरी सिस्टर का फोन आया था, बोल रही थी भैया मैंने घर पे 6 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया, 6 किलोवाट, और बोल रही थी कि पहले एक कमरे में एसी था, अभी तीनों कमरों में एसी लगा लिया और फिर भी बिजली बचती, बताओ क्या करूं। भगवान के नाम पे सोलर का उपयोग ऐसा मत करो, क्योंकि सोलर के भी साइड इफेक्ट है। सोलर का उपयोग पैसे बचाने के लिए करना और सोलर का उपयोग पर्यावरण बचाने के लिए करना, ये दोनों अलग है। जब आपको पैसे बचाना है तो आपको जनरेशन को मैक्सिमाइज करना है, जब आपको पर्यावरण बचाना है तो कंजम्पशन को मिनिमाइज करना है। ये दोनों अलग बात समझ में आई। अनफॉर्चुनेटली 99% लोग पैसे के लिए सोलर करते हैं, पर्यावरण के लिए नहीं। हमें पर्यावरण को बचाने की जरूरत है, क्योंकि अपना जीवन बचाना है, तो जनरेट करना चाहिए बनता है। ये नियम याद रहेगा सबको, ये नियम याद रहेगा, तो एक बार रिपीट करेंगे। एक बार रिपीट करेंगे। A means avoid, M means minimize, G means generate, कितना बंद कर। एमजी नियम का पालन नहीं किया तो पता हमको क्या बोलना पड़ेगा? OMG, oh my God, सोलर कितना महंगा है, oh my God, छत पे जगह नहीं है, पॉलिसी नहीं है, सब्सिडी नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, इसलिए बेटर है एमजी नियम का पालन करें। जब एमजी नियम का पालन करेंगे तो सही मायने में एनर्जी में सुधार होगा, सही मायने में एनर्जी में आत्मनिर्भरता होगी। और देश की प्रधानमंत्री जी ने भी कहा 2021 में लाल किले से, यदि देश को आत्मनिर्भर बनना है, यदि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और एनर्जी में आत्मनिर्भर बनना है तो हम सबको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, तब जाके एनर्जी में स्वराज आएगा। और एनर्जी में यदि स्वराज लेके आएंगे तो बहुत सारी समस्या हल कर लेंगे, रोजगार की समस्या हल कर सकते हैं, क्योंकि सब लोग आपस में इंडिविजुअल आत्मनिर्भर बनेंगे तो ज्यादा रोजगार पैदा होगा। लोकल लेवल पे आत्मनिर्भर बनेंगे तो लोकल अर्थव्यवस्था की होगी। हम इंडिपेंडेंट बनेंगे तो देश इंडिपेंडेंट बनेगा, बाहर से एनर्जी लाना नहीं पड़ेगा, फॉरेन से जुटेगा, इससे एनर्जी स्वराज बहुत सारी समस्याओं का हल है। ये सॉल्यूशन मैंने इंटरनेशनल कंपटीशन की IEEE के उसमें प्रेजेंट किया है, और पूरी दुनिया से 400 रिसर्च ली गई, और हमने नेशनल लेवल पे भी द विनर, और एशिया लेवल पे भी हम विनर थे। आखिरी राउंड में, फाइनल राउंड में ग्लोबल लेवल पे हर कॉन्टिनेंट से 3 टीमें, तो टोटल 21 टीमें थी। हमने वो सभी टीमों को हराया और एक ग्लोबल विनर बने, और हमें $1 लाख मिले। $1 लाख मतलब 80 लाख रुपए का प्राइज मिला। वो पैसे मैंने डोनेट कर दिए, डोनेट करके एक फाउंडेशन बनाई है जिसका उद्देश्य पूरी दुनिया में एनर्जी स्वराज की स्थापना करना। आई ऑल्सो बिलीव कि ये जो समस्या है क्लाइमेट चेंज की, ये मात्र सरकार की पॉलिसी से, इंडस्ट्री से सॉल्व नहीं कर सकते, और हमने देखा पिछले 30 साल से नहीं हुआ। वैसे भी क्लाइमेट चेंज सब नहीं है, इसलिए सबको इसमें भागीदार करना पड़ेगा, और जब सब भागीदार बनेंगे तो एक तरह से जन आंदोलन, और जन आंदोलन का होगा जब आप हमें ये गर्व होने लगे ये कहने में कि मैं बिना प्रेस के कपड़े पहनता हूं। जब आप गर्व से कहें कि मेरे घर में फ्रिज नहीं है, या गर्व से कहें कि मेरे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है, मेरे घर के कारण कार्बन एमिशन नहीं होता, तो गर्व का विषय है। हमें कम एनर्जी में जीवन जीना इक्वेशन बनाना पड़ेगा, है ना, कि जो ज्यादा बड़ी गाड़ी से आता है वो कब अच्छा है, उसको घर पे चाय के नहीं बनाएंगे, जो वो प्रेस करता है वो कब अच्छा है, उसके कारण कार्बन एमिशन होता है, वो मेरा दोस्त नहीं होगा। समझ आ रहा है? कम एनर्जी में जो जीता है वो अच्छा आदमी, उसको इक्वेशन बनाएंगे। इससे मैंने कहा ना मेरे घर में न फ्रिज है, न गीजर है, न एसी है, मैंने अपने कपड़ों पे प्रेस करना बंद कर दिया है, और इसको इक्वेशन बनाने के लिए एक और काम किया। मेरी 2 बेटियां हैं,
और हमने डिसाइड किया है कि वो बेटियों की जब भी शादी होगी, शादी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाएंगे जो बिना प्रेस के कपड़े पहनते हैं। अच्छा है ऐसा करने का नहीं तो प्रेशर होगा। मैं सबको इनवाइट करना चाहता हूँ कि हमारे कैफे चालू होने का हर मंडे आयरन फिट हर मंडे लगातार, क्योंकि एक बार एक जरूरी प्रेस करते तो 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अच्छा, आप में से अधिकतर लोग जो बैठे हैं बिना शादीशुदा है ना? आप में से कितने लोग अपनी शादी ऐसे करना चाहिए बिना प्रेस के कपड़े वाले मेहमान को बुलाएं? अच्छा, 4 लोग हैं। मैं एक बार फिर से नोट कर देता हूँ कि हम जो मेरी उम्र के लोग हैं 50 साल के, वो 20 साल में पढ़ने वाले हैं, तुम ही लोग पीछे बचने वाले हो और तुम्हें ही ज्यादा भुगतना है। इस एक्स्ट्रा नोट के साथ में फिर से एक बार पूछता हूँ कि आप में से कितने लोग अपने बर्थडे शादी वादी ऐसा करना चाहते हैं जब ये रूल रहेगा कि जो प्रेस के कपड़े पहन के आएगा उसको दरवाजे खोलने के नमस्ते कहलाना। एक बार फिर से देखते हैं। ओके, थैंक यू। इन सबके लिए जोरदार ताली। ऑलराइट, हमें और भी बहुत सारे एक्शन लेने की जरूरत है। I'm going to discuss। आप मेरे शर्ट पे क्या लिखा देख सकते हैं? I'm energy literate I am। This is illiteracy of energy। एनर्जी की ना समझ है। हमको पता नहीं कि एनर्जी आती कहाँ से, जाती कहाँ है, कितने हजार मीटर ट्रेवल करती है, कितना कार्बन एमिशन मेरे कारण होता है, मैं उसको कैसे कम कर सकता हूँ, मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, मैं सोलर, ये सब पता होना जरूरी है। हर व्यक्ति को पता होना चाहिए जो एनर्जी को उपयोग करता है। इसलिए मैंने ट्रेनिंग बनाया है, क्योंकि एनर्जी को यूज करने का लाइसेंस, मैं हमेशा कहता हूँ जो एनर्जी लिटरेट है उसी को एनर्जी को यूज करने का लाइसेंस होना चाहिए। तो आप सब लोग एनर्जी यूज करना चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके एनर्जी में लिटरेट बनिए। 3 घंटे का कोर्स है और ये सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स है, ऑनलाइन है, 12 मॉड्यूल है। आप लोग जरूर करें। मैं एक यूनिवर्सिटी पहले रजिस्टर करेगा, यूनिवर्सिटी आपको एक लिंक भेजेगा, उस लिंक से आपको करना है। एंड हर जगह मैं जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं एक एनर्जी लिटरेसी वीक बनाएंगे कि उस हफ्ते में सारे स्टूडेंट, सारे प्रोफेसर, स्टाफ सब लोग एनर्जी लिटरेट बनेंगे। आप लोग करेंगे? वेरी गुड। और एक हमारा क्लाइमेट क्लब है, ये जो क्लाइमेट क्लब असेंबली प्रोग्राम होता है तो वी कैन ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग हियर। आप दूसरे स्कूल, दूसरे कॉलेज को, दूसरे लोगों को बुला सकते हैं, एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एंड देयर आर मेनी अदर प्रोग्राम्स आर अवेलेबल on our portal, so I request all of you to please join this movement, become part of the energy Swaraj, become volunteer। आप जो भी करें एनर्जी को सेव करने के लिए use this hashtag energy Swaraj and hashtag energy Swaraj। With this note, if you want to read more, you can read my book which I have written down, and at the end I would like to summarize it, and I am not going to summarize myself। No, I am a professor। प्रोफेसर लोगों को एग्जाम देना अच्छा लगता है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम क्रिएट किया है यहाँ पे। फिल इन द ब्लैंक्स, टीम फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको रिक्त स्थान भरना है। रेडी? ओके, देखते हैं कौन करता है। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1। Change, climate is not changing, climate has already changed, and we can all feel and experience it कि बदल चुका है, same नहीं। Very good। Number 2, who has caused the climate change? I have done it, right? Because I am the user of energy and I am the user of material, so I have caused the climate change। Very good। Number 3, who will be the solution to climate change? I will be, because I am not going to wait for the government or policies and industry. It is for my own life. I want to make it better, and that's why I am going to do it। Let's do this। And one last number, यदि हमने ये सब नहीं किया, if we are not going to take a drastic and immediate action for the climate correction, then at the end of this century end होने में 78 years बाकी, 77.5 years बाकी। At the end of century, the global temperature कितना बढ़ जाएगा? 3.3 to 6 डिग्री। अभी सिर्फ 1.2 डिग्री में इतना उतर पूरा दुनिया में। यदि 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री बढ़ेगा, सोचो क्या होगा। एक बड़ा प्रश्न है, क्या मनुष्य का जीवन धरती पर बचेगा? यदि बचेगा तो कितनी संख्या में लोग जी रहे होंगे, और जो जी रहे होंगे किस रूप में जी रहे होंगे। इसलिए जो करना है आज करना है, ड्रास्टिक इमीडिएट एक्शन अभी लेना है।
तो नहीं लिया तो हम कहते हैं ना एक जमाने में धरती पर डायनासोर हुआ करते थे, अब नहीं है, विलुप्त हो गए, खत्म हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है 3, 4, 5,000 साल बाद धरती पर एक नई प्रजाति आएगी और क्या कहेगी, एक जमाने में धरती पर भगवान कैसी बातें कर रहे हैं। पर हमारा अनुभव, हमारा साइंस, हमारा डेटा ये होता है, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, आज से अभी से ड्रास्टिक इमीडिएट एक्शन लेना चालू करें ताकि इस धरती को जीने लायक धरती बना सके, हम खुद अच्छे से जी सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छी धरती हो सके। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर अभी यहाँ पे ओके सर यहाँ पे कुछ है सबका मंगल सॉन्ग तो वो क्या आएगा? नहीं हमारे पास तो ऐसा नहीं है सर। आपके कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं, पर उसके पहले हम लोग 1-2 मिनट का साइलेंस रखेंगे ताकि ये जो हमने सीखा उसको हम एब्जॉर्ब कर सकें, हवा में छोड़ कर, राइट। तो हम 2 मिनट का ध्यान करेंगे। आप सब लोग आगे करते हैं, प्रतीक का सुनकर हमको अच्छा एक्शन लेंगे 2 मिनट। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ें। When you chant Om many times, Om बोलने के लिए सांस लें। पसंद है? एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे-धीरे छोड़ दें और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। Thank you. Anybody? 2030 से क्यों चुना? आपको ऐसा लगता है कि 40 तक चलना चाहिए? अच्छा, कुछ हुआ था। हाँ, मैं 2019 में मैं एक वर्ल्ड ट्रिप पर गया था और जब मैं ऑलमोस्ट ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वेरी सारे देश देखे, फिर मुझे लगा कि दुनिया भर में जितने भी सरकारें हैं, जो भी प्रयास हो रहे हैं, वो एक ही दिशा में आर्थिक कर रहे हैं, भले वो पर्यावरण का नुकसान हो जाए, संबंधों का नुकसान हो जाए। इसलिए मुझे लगा कि ये तो ठीक नहीं है और कुछ करना चाहिए। और वही प्रश्न है हमने कि गांधी जी आज मुद्दे को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके हिसाब से हमने यात्रा का प्लान किया और 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है। ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे विश्व का प्रॉब्लम है कि 1-2 साल 5 साल में नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि कम से कम 10 साल तो इसको देना चाहिए, 11 साल तो देना चाहिए
और वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन भी होता है। इसलिए 2030 से चालू करके 2030 हाँ वेल मुझे लगा कि मतलब नहीं कर सकते क्योंकि या आईटी में लेके नहीं कर सकते कि ये भी प्रश्न आता है नहीं पर सबसे पहले जितने भी बड़े बड़े काम हुए जैसे आदि शंकराचार्य महात्मा गांधी तो जब भी बड़ा काम परिवर्तन लाना हो समय कम हो तो आपको समाज के बीच ही जाना पड़ेगा और जब बड़ा यज्ञ करना तो बड़ी आहुति भी देना पड़ेगा और ये काम ऐसा है कि पार्ट और पार्सल में नहीं किया जा सकता कि बोली दिवाली ब्रेक ले लिया ब्रेक ले लिया घर चले गए मुझे लगा कि 11 साल हर दिन सुबह शाम सोचे तो भी कम समय क्योंकि समस्या सिर्फ एक देश की नहीं एक प्रजाति की नहीं पूरे विश्व की समस्या तो इतना इंटेंसिटी और इतना एनर्जी इसको देने की जरूरत है वो भी कम है ऐसा मुझे लगा और 11 साल में देखो ऑलरेडी 1000 दिन हो गए मुझे लगता 1000 दिन ऐसे निकल गए तो 11 साल तो बहुत ही कम समय मैं अपने टीम को ये बोलता हूँ कि जल्दी करो टाइम निकल जा रहा है 11 साल बहुत कम है हाँ विभिन्न तरह के मतलब भी साथ देती है बच्चे भी साथ देते हैं मेरे बच्चे प्यारे हैं और वो हमेशा सजेशन देते हैं कि मुझे और क्या करना चाहिए आप सजेशन देते हैं मेरी छोटी बेटी बोलती है कि हमेशा आपको थोड़ा और फेमस होना चाहिए इससे काम नहीं चलेगा थोड़ा ऐसा करना चाहिए मैं जब मैंने डिसाइड किया धीरे धीरे बता रहा था कि मैं ऐसा करूंगा यात्रा में जाऊंगा एक दिन मैंने कहा कि खाने में उनको बता ही देना चाहिए कि 11 साल मतलब क्या तो मैंने दोनों बच्चों को बिठा खाना खाके उनको बोला कि बेटा देखो 11 साल की यात्रा का मतलब है 11 साल घर में तो बेटी बोलती है ठीक है ना वैसे भी आप घर का है तो मतलब काफी हल्का हो गया मैं क्या चलो कोई बात नहीं मैं मेंटली रेडी कैसा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं मैं नाउ दे वेरी सपोर्ट मतलब उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं करना और मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ का मेरे ताली बजाना चाहिए क्योंकि वो काम देती है बच्चों को भी संभालती बाकी तो घर से सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं पर हजार दिन में ये क्लियर हो गया कि ऐसा करना जरूरी है ये काम घर से लेके और आईटी से लेके ठीक है ये क्लियर है उसमें कोई डाउट anybody else नहीं हाँ अभी तो मुझे पूरी दुनिया का सपोर्ट है हर प्रदेश से जहाँ जाता हूँ बहुत सारे लोग मिलते हैं तो अभी मेरा परिवार अभी बड़ा बड़ा होता जा रहा है तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सभी लोग सपोर्ट करते हैं हाँ assuming कि बस जो है आपकी वो पूरी इलेक्ट्रिक होगी पर बस के अंदर तो डीजल इंजन लगा है हाँ तो कैन यू एक्सप्लेन बस पूरे पूरे ऐसा कहना है कि मुझे लग रहा था कि आपकी बस सोलर की मतलब इंजन भी सोलर की चलता है तो मैं क्या कहना क्यों चलता है मतलब बस में तो डीजल इंजन लगा है अच्छा अल्टीमेटली यू आर यूजिंग डीजल अल्टीमेटली आई यूजिंग डीजल तो मेरे पास दो चॉइस है एक तो मैं ये सब संन्यास लेके हिमालय पे जाके है ना ध्यान करो कोई कार्बन एमिशन न करो दूसरा तरीका है कि डीजल वाली बस चलाते हैं लाखों लोगों तक पहुंचाया जाए उनसे भी काम कराते हैं तो मुझे दूसरा तरीका ज्यादा नहीं इज इट ओके see that is what creating a balance in life is very important हम मनुष्य लोग एक्सट्रीम में बहुत आसानी से चले जाते हैं प्यार में तो मर जाते हैं या मार देते हैं बहुत आसान है दोनों एक्सट्रीम में जाते हैं ना तो प्यार को निभाना थोड़ा मुश्किल होता है कि लड़ाई हो गया फिर भी टिके रहे झगड़ा हो गया फिर भी टिके रहे तो एक्सट्रीम में जाना आसान है पर बैलेंस बनाना डीजल लगता है ये बात सही है परंतु मैं डीजल में यूज नहीं करूंगा तो मैं लाखों लोगों तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो लाखों लोगों को इंकरेज करके करोड़ों लोगों तक नहीं कर सकता इसलिए हमारा जो होते हैं आर्ट ऑफ लिविंग आर्ट ये जीवन जीना ही कला है क्योंकि हम एक कहावत जो भी पढ़ी उसी से ठंडा उसी से गर्म पढ़ा एक बचपन में पढ़ते थे बुक में कि कोई चीज गर्म हो जाती है गर्म रहती है उसको ठंडा कैसे करते हैं खूब मार के मतलब गर्म चीज को ठंडा कैसे करते हैं खूब मार के और ठंड में जब हाथ बहुत कांपते हैं तो उसको गर्म कैसे करते हैं वो भी खूब मार के करते हैं तो ये समझना पड़ेगा उसी से ठंडा भी होता है उसी से गर्म भी होता है आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर तो जीवन में बैलेंस बनाना सबसे बड़ी कला है
आपको कुछ काम करना है, नहीं भी करना, और वो धीरे धीरे अनुभव के साथ में, अच्छे विचार के साथ में, ज्ञान के साथ में, सत्संग के साथ में, मेडिटेशन के साथ में, वो सब हो सकता है। ऑलराइट, if there is no other question, I have one last question. मैं पूछ सकता हूँ? Yes. How are you all? How are you all? Very good. कब तक happy रहेंगे? जीवन भर, right? आप लोग भूल जाते हैं कि धरती पर इसीलिए आए, धरती पर खुश होने के लिए आए, और हम लोग क्या करते हैं? उसको छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं, इसलिए चालू कर जिससे लोग कैसे सब ठीक गड़बड़ है, ठीक नहीं है, कैसे है? खुश है। आज के बाद कोई पूछे कैसे हो तो क्या कहेंगे? हैप्पी है, खुश है। भले ताजा झगड़ा हुआ है ना, हस्बैंड वाइफ से, दोस्त से ताजा झगड़ा हो, फिर भी कोई मिलकर सामने पूछ लिया भाई कैसे हो तो क्या कहेंगे? हैप्पी। थोड़ा झूठ बोलेंगे, सब लोग थोड़ा झूठ बोलते होंगे ना? वेरी गुड। तो आज के बाद मेक श्योर कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी स्माइल को छीन न सके। स्माइल हमेशा रहेगी, बल्कि उल्टा करना है, तुम्हारी स्माइल से हम दुनिया को बदल देंगे, राइट? क्लाइमेट चेंज को ठीक कर देंगे। थैंक यू सो मच। Thank you very much, sir, for such an inspiration session, and especially thanks to teachers like आश्चर्यचकित प्राणायाम जो हमने सर से सीखा, फिर उसके बाद हमने सीखा कि काम हमसे नहीं होने वाला है, मैं से शुरुआत करनी है, ठीक है? We are the only responsible for that thing. उसके बाद हमने ये भी सीखा कि कुछ मत करो सर के पास, और लास्ट ये सीखा कि ऐसे ये सब पॉसिबल है, तो फ्रॉम दैट ड्रास्टिक एंड इमीडिएट चेंज। तो सर वी प्रॉमिस कि इसमें से जो कुछ हो सके हमसे वो हम करेंगे। एंड और सर अगली बार भी आना, जैसे आपने बताया कि आप कुछ सेशन ले रहे हो या फिर कुछ ट्रेनिंग जैसा कुछ करवा रहे हो, तो सर वी इनवाइट यू फॉर द नेक्स्ट सेशन। एंड नेक्स्ट नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर फॉर वर्ड्स ऑफ विजडम। सर प्लीज। नमस्कार सर, ये विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हम आपको एश्योरेंस देना चाहते हैं कि जो आपने 6 पॉइंट बताए हम उसको पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे, और विश्वविद्यालय की ओर से भी जो आपने ये ट्रेनिंग सेशन वगैरह बताए वो भी हम पूरा प्रयास करेंगे। बाकी का सोलर वगैरह का सर हमारे विश्वविद्यालय में काफ़ी यूज़ है, ज़्यादातर शायद 19 बिल्डिंग पे तो हमने लगा दिए हैं, और बाकी छोटी छोटी चीज़ों का तो घर पे तो हमारे तो संस्कार है, मुझे तो घर पे मेरे परिवारजन कभी कभी बोलते ये ज़्यादा कच करे से बता रहे है ना, क्योंकि वो कई मेरे कार्यालय में भी कभी कभी बोलते रहते हैं, हमारे साथ जो दफ्तर में काम करते हैं वो बोलते हैं ना ये कैसी बंद कर दो, बाकी पीछे की लाइट बंद कर दो, तो इसको लगता है ये ज़्यादा कच करे है। तो हमारा तो स्वभाव है सर पालन करें, बाकी औरों को भी प्रयास करेंगे। सबको आप आए और हमारे विश्वविद्यालय में, इसके लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपका भी आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Now I would like to invite Department Coordinator Dr. Gaurav Shah, sir, to vote of thanks. Thank you, one and all. I would like to especially thank all of you, because you will be the future ambassador for sustainable goals to be achieved, what he told. And I really thank university administration, registrar sir, vice chancellor sir, and all staff of our department as well as university who has helped us in achieving certain aims which we have already decided. And sir, you have motivated us a lot, and I hope in future also you will guide us and we will do the needful. Thank you very much. Thank you one and all.